Okay, so let's start our today's webinar. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Welcome to the today's webinar on the topic of how bioequivalence studies can propel Pakistan pharma companies forward. Bioequivalence is a critical concept that ensures the safety, efficacy, and quality of generic medicines. It serves as a cornerstone in the approval process of generic drug, confirming that these drugs have the same therapeutic effect as their branded counterparts. By demonstrating bioequivalence, pharmaceutical companies can assure regulators, healthcare providers, and patients that their products both are effective and safe. The importance of bioequivalence. Your mic is mute. Hello. Okay. So, welcome you all to the today's webinar on the topic of how bioequivalence studies can propel Pakistan pharma companies forward. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Bioequivalence is a critical concept that ensures the safety, efficacy, and quality of generic medicines. It serves as a cornerstone in the approval process for generic drugs, confirming that these drugs have the same therapeutic effect as their branded counterparts. By demonstrating bioequivalence, pharmaceutical companies can assure regulators, healthcare providers, and patients that their products both are effective and safe. The importance of bioequivalence extends beyond individual treatment. It plays a vital role in the global healthcare landscape, influencing drug affordability, accessibility, and sustainability in the healthcare system. By facilitating the entire of cost-effective generic drug into market, bioequivalence study contributes significantly to reducing healthcare costs and expanding access to essential medications. In this webinar, we will deliver into a various aspects of bioequivalence, including its scientific principles, regulatory requirements, and the challenges and advancement in this field. Our goal is to provide a comprehensive understanding that how bioequivalence studies can propel Pakistan pharma in forward. We are honored to have Dr. Sadia Asim, an expert in bioequivalence, and will share her insight and experience, shedding light in the pivotal role of bioequivalence plays in the modern healthcare system. Thank you for joining us today. We look forward to an engaging and informative session. I welcome Dr. Sadia Asim. It is a great pleasure that we welcome Dr. Sadia Asim, esteemed Director of Institute of Biological, Biochemical and Pharmaceutical Sciences at Dow University of Health Sciences to our webinar today. Dr. Sadia has distinguished academic and professional journey. She graduated with her PharmD in 2006 and earned her MBA and a PhD scholar, showcasing her relentless pursuit to knowledge and excellence. Among her numerous accolades, Dr. Sadia is a gold medalist from the Faculty of Pharmacy at Hamdard University, an honor she received in 2008. Her expertise is further enriched by her foreign training at the Pharmaceutical Research Unit in Jordan, where she specialized in bioequivalence and bioavailability studies, pharmacokinetic studies, and the analysis of biological samples and clinical trials. Additionally, she has received an advanced training in HPLC and LCMS MS focusing on method development and validation of the biological test method. Dr. Sadia proficiency extend to standard and application, having trained on ISO 17025 and ISO 9001-2008 standards, in CTD dosage preparation and in ICH GCP GLP guidelines. Her career began at the ICCBS University of Karachi, where she served as a Center of Bioequivalence Studies and Bioassay Research from 2007 till 2013. In 2012, she joined DUHS and since immense 15 years of experience in conducting clinical studies, including bioequivalence, bioavailability studies, and clinical trials. She has been a principal investigator and co-principal investigator on several clinical trials and has directed numerous bioequivalence studies.
Dr. Sadia's extensive experience and significant contribute to the field of pharmaceutical sciences make a valuable asset to our webinar. We are honored to have her share the insight and expertise with us today. Please join me in welcoming Dr. Sadia Asim. Over to Dr. Sadia. Thank, thank you so much, Naveen, for a detailed introduction. Through this webinar, I must appreciate all the decision taken by the DRAB, by the University of Dow University of Health Sciences and many other healthcare sector academic institution who is considering the importance of this concept. I would like to say thanks to the DRAB for taking a wonderful decision regarding the bioequivalence study. Because this is a major milestone should be achieved in the Pakistan for getting the registration. I think as Naveen just shared my whole career, I got my training in Jordan in 2008. After that, I thought I don't know when it will become more important for the Pakistani government as well. But in 2024, I think this is one of the major milestones we achieved through the DRAB, and they taking decision regarding the registration of the drug required the BE study. I think this is one of the major contribution, especially in the field of bioequivalence study. Because जब मैंने ट्रेनिंग 2008 में बायोक्लेंस की करी थी जॉर्डन में, तो जिस इंस्टीट्यूट से मैंने बेसिकली ट्रेनिंग ली थी, दे वर डूइंग अराउंड 200 स्टडीज इन ईयर. तो ये बहुत ही बड़े अचीवमेंट की बात थी उनके लिए कि मतलब दे आर कंडक्टिंग 200 स्टडीज इन ईयर. बट अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, बट वी आर स्टिल trying to convince different stakeholders about the importance of the BE study. So जैसे ही हमारे ड्राफ्ट ने एक अच्छा स्टेप लिया है रिगार्डिंग द बी, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री स्टडी सेंटर हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हम इस वेबिनार के जरिए बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता स्टिल what is the importance of the BE study and how the BE study helps and support the pharmaceutical industry to expand the business opportunities. अच्छा सिर्फ इसका बेसिकली इससे बेनिफिट ये नहीं है कि हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इट विल इंक्रीज द सेल ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है. बाय द हेल्प ऑफ बी स्टडी आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट इन द लो कॉस्ट आप अपने मार्केट में दे सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा बी स्टडी का इम्प्लीमेंट होना और बायोकोलेंट का प्रोडक्ट पाकिस्तान में आना. स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, आल्दो बी स्टडी हो सकता है हम में से बहुत सारे जो इसका पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उन लोगों को पता हो कि किस तरीके से बी स्टडी आपको आपकी फार्मास्यूटिकल सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है. लेकिन अगर मैं सिर्फ अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हेल्थ केयर सेक्टर में, क्योंकि हमारी पब्लिक को एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ लो कॉस्ट मिलेगी. हमारी आवाम के पास खाने का पैसा नहीं, वो अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है. एक प्रोडक्ट जो 1000 रुपये या 1500 रुपये की एक टैबलेट मिलेगी, उसके लिए वो टैबलेट 100 रुपये में परचेज करना फिर भी बहुत हद तक आसान हो जाएगा. तो लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज होगी, लोगों के लिए हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. सो थ्रू दिस वेबिनार मैं आपको जैसे 10 to 15 मिनट्स की हमारी शॉर्ट प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगी कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री स्टडी है क्या, स्पेशली उन बिगनर्स के लिए जिनको नहीं पता, जिनको इसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया नहीं है कि किस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है. बट हम पाकिस्तान में 2024 में भी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी नीड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है पाकिस्तान में. और थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, स्टेप्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है. तो इट जस्ट गिव या आई जस्ट गिव यू जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट द बीई स्टडी. एक आपको शॉर्ट हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि स्टेटस क्या होना चाहिए बी स्टडी सेंटर का, बी स्टडी सेंटर के अंदर फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए. तो जस्ट अ 5 मिनट वीडियो जो कि आपको एक ग्लिम्स देगा कि डाउ यूनिवर्सिटी ने ये इदारा जो स्टैब्लिश किया है बी स्टडी सेंटर का, वो कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे रहा है. देन फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे नवीन के साथ, और इसके बाद फिर आपके लिए ओपन होगा फोरम. अगर आपको कोई भी सवाल होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं तमाम क्वेश्चन आंसर्स को रिजॉल्व कर सकूं. So I think we should start our today's presentation. Next.
Next slide, please. Maybe it is not okay. Okay, as I told you, I will give you the overview of the bioequivalence study, the importance of the bioequivalence study, what is the regulatory framework available in the Pakistan for the BE studies, a small BE study video, and the BE studies and the pharmaceutical export, and the last but not least, the procedure of the BE study. Next slide. Okay, this is the one of the most important slide. इस लेवल पे हम सबको इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए कि बायोइक्विवेलेंस स्टडी बेसिकली है क्या, कब इसकी नीड क्रिएट होती है, उनमें से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल होंगे, हो सकता है कि मेरी आवाज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सुनी जाए, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि बायोइक्विवेलेंस स्टडी कब रिक्वायर होती है और क्लिनिकल ट्रायल्स कब रिक्वायर होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में तो फिर भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि अगर हमें एक न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अगर लेके आना है तो उसके लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल इज अ डिटेल स्टडी, इट विल टेक more than 10 years, 20, 12 years, depending upon the nature of the molecules. It's a time-taking process, it's a costly process, or it's a detailed study जब हम clinical trials की बात करते हैं। Clinical trials successfully complete होने के बाद आपको FDA एक time period दे देता है for the sale of your product. Once the patent holder going to be expired, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास एक फ्रीडम आता है, नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उनके लिए ये सारी एफर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो डिटेल स्टडीज करें जो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स में हो चुकी हैं। दे जस्ट नीड टू कंपेयर दैट प्रोडक्ट विद द रेफरेंस प्रोडक्ट, जो आपकी रेफरेंस इनोवेटर प्रोडक्ट है जो FDA अप्रूव कर देता है, वो आपके पास एक रेफरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। यू जस्ट नीड टू कंपेयर योर प्रोडक्ट विद द रेफरेंस प्रोडक्ट एंड उसकी कंपैरिजन करने के बाद आप उसकी क्वालिटी को डिक्लेयर कर देते हैं कि दैट बोथ प्रोडक्ट्स आर बायोइक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये इट्स जस्ट अ स्मॉल प्रोसेस, कोई इतना लंबा लेंथी प्रोसेस नहीं है, इसकी कॉस्ट भी कम है, इसका टाइम भी कम है, लेकिन इसका बेनिफिट कितना है आप इसके बेनिफिट को देखें। मैं इस यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है like both products should be equivalent, pharmaceutical equivalent, pharmaceutical alternative, and their viabilities in terms of the rate and extent of absorption, they should be same. The same API, same dose, same strength, same dosage form. All these things should be same. ठीक है? Effect, efficacy, safety should be same of both product. अगर आपकी रेफरेंस प्रोडक्ट की और टेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी मैच हो जाती है, both are giving same results, both are giving same pharmacokinetics parameters. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और एडिशन कर दूं कि based on the pharmacokinetics, बायोबिलिटी हो गई आपकी, Cmax है, Tmax है, जो हमारे स्पेशली जो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते थे, they know about the pharmacokinetics parameters. On the basis of Cmax, Tmax, AUC, half-life, AUC 0 to infinity, these are the major parameters जिनकी बेसिस पे pharmacokinetics जज होती, जिनकी बेसिस पे बायोइक्विवेलेंसी डिक्लेयर की जाती है। अगर ये तो आपकी प्रोडक्ट टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट सेम रिजल्ट देंगी, तो इट्स मीन द बोथ प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकली अल्टरनेटिव एंड फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको बायोइक्विवेलेंस की नीड कब शुरू होती है और दो प्रोडक्ट बायोइक्विवेलेंट कब जब कहलाएंगी, जब दोनों का बिहेवियर इन वीवो सेम होगा। ठीक है, इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी। आप एक हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर को एक मेडिसिन उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं एंड देन उसके अंदर रिस्पॉन्स हम चेक करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ड्रग वर्सेस टाइम, जो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप ये जो ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ऑरेंज और ग्रीन कलर की टैबलेट नजर आ रही है एंड इट्स आल्सो शोइंग द टू डिफरेंट ग्राफ। ये दोनों ग्राफ अगर इक्विवेलेंट होंगे या विद इन द 80 to 120% एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, उसके बिटवीन अगर ये रिजल्ट आ रहे होंगे तो इट्स मीन योर प्रोडक्ट इज बायोइक्विवेलेंट टू द रेफरेंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अच्छा, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्लाइड यहाँ पे ज़रूर इसलिए डाली है क्योंकि जैसे ही ड्रग ने एक अपना डिसीजन इम्पोज किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए बी मैंडेटरी हो गई, तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बी स्टडी, लोगों के पास अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर
तो यहाँ पे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हम ये समझे कि 100% जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड है हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, उन सबकी पी करवाएंगे, तो द आंसर इज नो। नो, नॉट एवरी जेनेरिक मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड बीई स्टडी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि किन फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स की हम बीई करवाएंगे और या बीई की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये चीज आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखें। ओनली दोज प्रोडक्ट दैट are falling under the category of BCS classification 2 and 4, fixed dose combination, non-oral, non-parenteral pharmaceutical product, but it designed to act systematically, narrow therapeutic index molecule, and the modified release dosage form. Only these 5 categories molecule require B study. ये चीज आप लोग क्लियर करें ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्वेरीज आने शुरू हो गई हैं। फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स हमने मल्टीपल क्वेरीज जो है वो रिसीव किए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हमें बी स्टडी किन किन चीज़ों की करवानी है, किन मॉलिक्यूल्स की करानी है। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हमने यहाँ पे कर दी कि वो मॉलिक्यूल्स जो बी से क्लासिफिकेशन 2 and 4 कैटेगरी में आएंगे, इट इज मैंडेटरी टू परफॉर्म द बी स्टडीज। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म, and the non-oral and non-parenteral pharmaceutical product, they are designed to act systematically. They need bioequivalence studies. Next, please. Okay, here we are showing the importance of the bioequivalence study. As I told you, the generic product क्वेश्चन जो हम तो ऐसा करेंगे कि एंड में करेंगे, तो अभी हम मुझे थोड़ा फ्लो में आप लोगों को बताने दें कि क्या क्या हैं चीज़ें। उसके बाद हम एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन और द क्वेश्चन आंसर सेशन हम अपना लोगों से सवाल जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, ओके, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोएक्विवलेंस स्टडी। हम क्यों बायोएक्विवलेंस स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द ओनली वे जिसके जरिए आप अपनी लोकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इनोवेटर के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट जाहिर कर सकते हैं। दिस इज द ओनली वे। ठीक है, एक तो ये चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इनोवेटर प्रोडक्ट जब भी मार्केट में आएगी, ऑफ कोर्स वो क्लिनिकल ट्रायल की फेज से गुजर रही है। इट्स अ टीडियस टाइप ऑफ वर्क जिसमें कॉस्ट भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, और उसमें मैक्सिमम स्टडीज आपकी न्यू मॉलिक्यूल पे ऊपर कंडक्ट हो चुकी होती है। आपके पास सेकेंडरी डेटा मौजूद होता है, आपके पास प्राइमरी डेटा ऑलरेडी मौजूद होता है, तो बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आपको इतने हैसल में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बायोएक्विवलेंस की बात करेंगे तो बायोएक्विवलेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को कंपैरिजन करवाना है इनोवेटर प्रोडक्ट से। तो आपके टास्क जो हैं, जो 100% क्लिनिकल ट्रायल्स में टास्क हो रहे हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ और 1% आपका काम रह जाता है, वो है इक्विवेलेंसी योर प्रोडक्ट विद द रेफरेंस एज कंपेयर टू द रेफरेंस प्रोडक्ट। अब आप ये देखें, उससे आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी, वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी होगी, लेकिन वो एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट होगी जो कि इनोवेटर की इक्विवेलेंट होगी। तो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर को, हमारे पेशेंट को एक ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जिसकी कॉस्ट तो कम है, लेकिन इसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसकी क्वालिटी इक्वल टू द रेफरेंस प्रोडक्ट। अगर वो बंदा 1000 रुपए की टैबलेट लेगा और ये बंदा 100 रुपए की टैबलेट लेगा, तो बोथ प्रोडक्ट आर सेम, both effects are same, both are producing the same efficacy and the safety on the human body. तो ये एक बहुत बड़ी इसका जो मेजर कॉज है, हम क्यों फोकस करें बी स्टडीज को, द मेजर कॉज, द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ द बी स्टडी इज टू रिड्यूस द हेल्थ केयर कॉस्ट। एंड देन अगर हम फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, इट विल इंक्रीज, इट विल बूस्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल by the help of exporting your product. आपको सिर्फ पाकिस्तान, अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बात करें, सिर्फ आपको पाकिस्तान में सपोर्ट करने बी सपोर्ट नहीं करेगा। You may export your product to any other pharmaceutical to any other international country जहाँ पे stringent guidelines भी फॉलो हो रही हैं या stringent regulation है, आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए ओपन हो जाती है। तो अब आपको बहुत सारे जो हमारे रेगुलेटरी या बीडी के जो लोग हैं, उनको पता है कि डिफरेंट हमारे जो कंट्रीज हैं, उन सब की स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, उनके पास ये स्टैंडर्ड्स अब रिक्वायरमेंट आ चुकी है। दे नीड अ बी रिपोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट। सो ये अल्टीमेटली सिर्फ आपको बी स्टडी पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं कर रहा, इट विल आल्सो हेल्प टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट।
Also, it was जैसे मैंने आपको पहले मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ, it will demonstrate the quality of the generic product. और अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है कि अब ये हमारी रेगुलेटरी सबमिशन की रिक्वायरमेंट भी बनता है. नेक्स्ट प्लीज. Okay, as I told you multiple time, BE study, it basically it will open your new gate or new business opportunity in the stringent regulatory authorities of countries. Definitely, it will boost your sale. Next, please. अच्छा, these are the major guidelines जो भी BE centers हैं. अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी BE centers की, they are also following the same guidelines जो internationally recommended है, जिसके अंदर ICH, WHO, European guideline, FDA guideline, these are the mandatory guidelines जो internationally applicable हैं for conducting the BE study center, for establishing a BE study center, जिसमें हमारे दो local जो regulatory है, जैसे हमारे DRAP है, जो हमारे NBC है, they also establish a new guidelines or separate guideline for developing or for establishing BE study center and how you may conduct the BE study. तो अब आपके पास नेशनल इंटरनेशनल दोनों गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं. नेशनल गाइडलाइन फॉर द पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है, प्लस जो ICH, WHO, FDA, यूरोपियन गाइडलाइन की मैं बात कर रही हूँ, ये वही सेम गाइडलाइन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट BE स्टडी सेंटर्स या ROs अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग द BE स्टडी. एंड वी आर ऑल इन पाकिस्तान, वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द BE स्टडी एंड फॉर एस्टैब्लिशिंग द BE स्टडी सेंटर इन पाकिस्तान. Next, please. Okay, before going to start the process of BE study, ये चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो भी इदारा है जो BE स्टडीज कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान में, अगर मैं जैसे आपको मेरी एफिलिएशन का अंदाजा हुआ कि मैंने अपना करियर स्टार्ट कराची यूनिवर्सिटी से किया एंड देन मैंने डाउ ज्वाइन किया, तो दोनों के पास बहुत अच्छे BE सेंटर एस्टैब्लिश हुए हैं, डाउ यूनिवर्सिटी के पास भी और कराची यूनिवर्सिटी के पास भी. तो जितने भी BE स्टडी सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जो अवेलेबल है, दे आल्सो फॉलो द सेम गाइडलाइंस आई टोल्ड यू बिफोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड. हर इदारे में, जैसे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक हमारा इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी एथिकली एंड टेक्निकली रिव्यू करता है. बेसिकली जो एथिक्स है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और हमारे जो इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड है वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे प्रोटोकॉल, इन्फॉर्म कंसर्न फॉर्म, केस रिफॉर्म फॉर्म, तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है. एंड इट यूजुअली टेक्स 6 वीक फॉर द रिव्यू पर्पस एंड इट हैज नो फीस. नेक्स्ट प्लीज. Along with the ethics committee, national bar ethics committee, इनको भी हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए. They also doing a wonderful job. और national bar ethics committee जो located है हमारे इस्लामाबाद में, इनकी I think 20,000 रुपीस इनकी फीस है और इनका जो यूजुअल टाइम पीरियड होता है वो 8 वीक्स होता है. तो विदिन तो हम बेसिकली साइमल्टेनियसली ये करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए एक अपना IRB एंड NBC में सेम टाइम पैरेलल हम दोनों रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं और उनसे उनका एथिकल रिव्यू और टेक्निकल रिव्यू कमेंट्स हम ले लेते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Once we get the approval from the IRB and the NBC, we have to submit our protocol to the DRAP. अच्छा, DRAP ने बायोस्टडी रूल्स 2017 में जो है वो रिलीज किए हैं, जिसके अंदर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर चेकलिस्ट मेंशन है कि BE स्टडी सेंटर हो या क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हो या तो CROs हो, ऑल दीज टाइप ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह की होनी चाहिए. और अगर आप अपना एक प्रपोजल सबमिट करते हैं फॉर द BE स्टडी अप्रूवल या द क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूवल, तो उनकी रिक्वायरमेंट सारी मेंशन है. तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है. 2017 में ये रूल्स हमारे पास आए हैं और ऑल द जितने भी हमारे ट्रायल साइट्स हैं या बायोक्लिनिकल सेंटर, वी आर ऑल फॉलोइंग द सेम गाइडलाइंस. तो जब हमें अपनी BE सेंटर का रजिस्ट्रेशन लेनी होती है या लाइसेंस अप्लाई करना होता है, तो वी हैव टू सबमिट द फॉर्म 1 अलॉन्ग विद द 300K फीस. उसके बाद ड्रैप एक पैनल अपना बनाता है और इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन के अंदर कंप्लाइंस से की जा रही होती है उन तमाम गाइडलाइंस की जो कि रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हमारी BE स्टडी सेंटर के लिए. एंड देन जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, एक लाइसेंस मिल जाता है फॉर कंडक्टिंग द BE स्टडी,
Then you have to submit your proposal, your BE study document to the DREP by using the form 2A along with the 200K fees. Next, please. Next slide, please. Okay. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से क्विक व्यू देती हूँ कि बेसिकली ताकि आप लोगों को सबको एक आइडिया हो कि ये फ्लो ऑफ वर्क क्या होता है, बायोइक्विवेलेंस स्टडी कंडक्ट कैसे होती है, सबको थोड़ा सा एक माइंड में एक स्टेप्स आ जाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी यही स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ बीई स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव होती है अपने क्लाइंट से, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे हमें रिक्वेस्ट रिसीव होती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट करते हैं बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द IBPS। उस एग्रीमेंट में तमाम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो चुकी होती हैं कि ड्यूरेशन स्टडी क्या होगा, बजट क्या होगा, तमाम रोल्स, terms and condition, everything we have to settle down at the time of the agreement. Then we have to start the preparation of the protocol and other related documents, including the informed consent form, case report form, and so on. Then we have initially we have to take approval from your side, any from a sponsor, and then as I told you, we have to take the approval from the IRB and the NBC, and then finally we have to take approval from the DREB for the initiation of the BE study reverse site. Next, please. Okay, at the same time when we receive the request from sponsor side and once we agreed all terms and conditions at the time of the agreement, the biological department of our organization, they have to start work on literature survey, because literature survey is very important for us. लिटरेचर सर्वे में हम उसकी तमाम पॉसिबिलिटीज जो है और रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास मेथड किस तरह का होगा, बिकॉज ये जो मेथड्स इसमें हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू डेवलप एंड वैलिडेट बाय आवरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड्स हैं ये आपके पास किसी यूएससी बीपी में नहीं होते, बायोलॉजिकल मेथड्स. So we have to develop and validate by ourselves by using the every validation guidelines, and then उसके बाद जो इसकी validation के और जो और documentation के process हैं वो हम यहाँ पे laboratory complete करती है before initiation of any study. Next, please. At the same time, the clinical department start work on the human subject recruitment, because ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि जिस बॉडी के ऊपर आप काम करना जा रहे हैं दे शुड बी हेल्दी. हम इसके अंदर हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट करते हैं फॉर द इन विवो एनालिसिस पर्पस. सो वी हैव टू रिक्रूट द सब्जेक्ट, screen them, then finally select our subject based on the inclusion exclusion criteria, and then we have to assign the code to the investigation product and to the human as well, because यहाँ पे confidentiality का बहुत बड़ा रोल है जो हम इस पे कंसीडर करते हैं कि आपकी जो भी वॉलंटियर्स हैं जो आपके पास पार्टिसिपेशन के लिए आ रहे हैं उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे लीक नहीं होगी. At the time of the registration at our volunteer healthcare facility site, we have to assign a separate code to them ताकि उनकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक आउट नहीं हो. इस चीज़ का ख्याल हम बहुत ज़्यादा रखते हैं. देन फाइनली हमारी रेंडमाइजेशन होती है बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर. वी आर डूइंग दिस. सो ये सारे प्रिपरेशन फेसेस हैं जो हमारा लेबॉर्ट्री, बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, क्लिनिकल डिपार्टमेंट एंड द रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, दे आर ऑल डूइंग ऑल दीज टास्क साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट प्लीज. Next, please. Okay. ये भी बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हम किस किस्म के टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो दीज आर द कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं. जितनी भी वॉलंटियर्स हमारे पास रजिस्ट्रेशन बैंक में होते हैं, हम वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक स्टडी. उसके बाद उन तमाम वॉलंटियर्स का हम स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और ये फैसिलिटी भी डाउन में हमारे पास मौजूद है कि बिकॉज
इट्स अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये बेनिफिट हमारे पास मौजूद है कि तमाम डोमेन्स अंडर द वन अम्ब्रेला रन कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि हम अपने वॉलंटियर्स हम सेलेक्ट करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं फ्रॉम डाउ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री, एंड देन ये तमाम टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं जो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल नेचर हम इसमें एड ऑन करवाते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या हमारे कंसल्टेंट एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ें भी हम उसमें ऐड करवाएं। बट दीज आर द बेसिक टेस्ट जो स्क्रीनिंग में हमारे मैंडेटरी हैं कि हम परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Okay, once everything has been completed in the preparation phase, the clinical department basically invite the selected volunteers for the checking purpose. चेकिंग होती है, चेकिंग के टाइम पे उनकी तमाम पर्सनल बिलोंगिंग उनसे ले ली जाती है ताकि किसी किस्म की भी वो अपनी डाइट खुद से ना लें, किसी किस्म का भी इसमें ऐसा ना हो कि हम उनको वो तमाम प्रोहिबिटेड आइटम्स लेने की कोशिश करें। तो उन तमाम उनसे पर्सनल बिलोंगिंग लेने के बाद उनको हम प्रॉपर यूनिफॉर्म देते हैं, और इनके पास एक हैंगिंग कार्ड होता है, एक हैंगिंग रिस्टबैंड होता है जिसके ऊपर उनका कोड असाइन होता है। तो वो कोड जो है वो वही होता है जो कोड थ्रू आउट द बी स्टडी हम यूज कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद उनका डिफरेंट सैंपल टाइम पॉइंट्स होते हैं जिन पे उनके सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं, सैंपल प्रोसेस होता है, इसको स्टोर करते हैं, एंड देन फाइनली सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द टू द बायोलॉजिकल लेबोरेटरी फॉर द एनालिसिस पर्पस। नेक्स्ट प्लीज। ओके, व्हाट आर द पोस्ट स्टडी एक्टिविटीज? पोस्ट स्टडी एक्टिविटीज में बेसिकली ये है कि आपके पास जब जितने भी हमारे सैंपल्स हैं, ब्लड सैंपल्स हैं, यूरिन सैंपल या एनी अदर बायोलॉजिकल सैंपल जिसके अंदर ड्रग कॉन्सेंट्रेशंस डिटरमाइन करनी होती हैं, वो तमाम सैंपल्स जैसे हमारे पास बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोडेड सैंपल्स होते हैं। कोडेड सैंपल्स की ड्रग कॉन्सेंट्रेशंस आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो सारा डेटा फाइनली जो हमारा डेटा जनरेट हो रहा है क्लिनिकल एनालिटिकल डिपार्टमेंट से, वो सारा डेटा सबमिट हो जाता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के पास। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इसको हमारे जो बायोस्टैटिस्टिशियन है उनको डेटा देते हैं, और डेटा हमारे जो बायोस्टैटिस्टिशियन है वो सेस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उसकी फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, देन फाइनली बी रिपोर्ट जो है प्रिपेयर कर ली जाती है। नेक्स्ट प्लीज। Okay, as I told you in my in the starting of my presentation, these are the major parameters। ये आप लोगों को थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए कि what are these parameters जिनकी बेसिस पे हम B जो है वो डिक्लेयर करते हैं। These are the Cmax, concentration maximum, Tmax, the time at which a maximum concentration is observed, the half life, E to 0T and 0 to infinity। These are the major parameters जिनकी बेसिस पे हम बायोइक्विलेंस जो है परफॉर्म करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, देन डिक्लेयर करते हैं कि द बोथ प्रोडक्ट्स आर बायोइक्विलेंट और नॉट। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, हम वन बाय वन तमाम सवालों के जवाब देंगे। अभी हमने अपने कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो हमें लगता है कि आप लोगों के अब तक जितनी भी क्वेरीज आई उन तमाम लोगों चीज़ों को गैदर करके हम लोग कुछ अपने सवाल पर आए हैं। नवीन प्लीज प्रोसीड, देन फिर हम अपने पब्लिक के सवाल शुरू करेंगे। Thank you so much, Dr. Sadia, for this wonderful presentation and information. My question is, what is difference between biosimilarity studies and bioequivalence studies? अच्छा, ये वाकई आपने बहुत अच्छा सवाल डिज़ाइन किया है कि ये भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बायोसिमिलैरिटी हम कब करेंगे और बायोइक्विवेलेंस कब करेंगे। देखिए, बायोसिमिलैरिटी एक बहुत डिटेल स्टडी होती है, ठीक है, और बायोसिमिलैरिटी बेसिकली किसके लिए, किन मॉलिक्यूल्स के लिए? ओनली द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स is the biosimilarity studies is allowed only for the biological products। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके अंदर डिटेल्स स्टडीज होती है जिनके अंदर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी होती हैं, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी चेक की होती है, जीनोटॉक्सिसिटी है, इम्यूनोजेनिसिटी है, पीके कंपैरिजन है। तो इट्स अ डिटेल स्टडी, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टडी होती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन है। बट अगर हम बी की बात करें, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बी के अंदर हम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक करके बेस्ड ऑन द पी के पैरामीटर्स हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बायोसिमिलरिटी स्टडीज की बात करेंगे तो इट्स अ डिटेल
टाइप ऑफ स्टडी जो कि थोड़ा सा बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसलिए उनकी स्टडी भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और इट्स अ डिटेल स्टडी एज कम्पेयर टू द बीई स्टडी। जी नेक्स्ट प्लीज। What is difference between generic and innovative drug? आई थिंक ये मैंने प्रेजेंटेशन में बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। जेनेरिक इनोवेटिव प्रोडक्ट में फर्क यही है, इनोवेटिव प्रोडक्ट वो है जो क्लिनिकल आफ्टर पासिंग द होल प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल आपके पास एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आती है जिसको एफडीए में आप रजिस्टर करवाते हैं। एफडीए आपको टाइमलाइन देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है तो डिफरेंट आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिफरेंट अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दे में मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट and compare them with the innovative product. तो रेफरेंस प्रोडक्ट आपका एक जो है वो एक कंपैरेटिव प्रोडक्ट बन जाता है फॉर द लोकल कंपनीज के लिए या आपकी फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। Okay. My next question is what software which we are using for sample size calculation? यूजुअली हम अभी डाउ में हम जो यूज कर रहे हैं वो सेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर रेंडमाइजेशन, फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन, फॉर पीके एनालिसिस, फॉर स्टैटिस्टिकल करेंगे कैलकुलेशन। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं डाउ में। Okay. My second last question is how IBPS is maintaining data integrity? डेटा इंटीग्रिटी देखें ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेटा मैंने, बिकॉज इसमें हम अब तक जो हिस्ट्री देखते आए हैं कि इसमें डेटा मैनिपुलेशन लोग बहुत करते हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं। तो हमने इन तमाम रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए ईडीसी टूल यूज करना शुरू किया है। अब डाउ में बायोकेमिकल स्टडी सेंटर के अंदर या हमारे क्लिनिकल ट्रायल साइट दोनों जगह हमारे ईडीसी टूल यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर हम टूल्स यूज कर रहे हैं, हमारे पास रेड कैप सॉफ्टवेयर है, हमारे पास मेरिडेटा सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम बेसिकली यूज कर रहे हैं डाउ में फॉर डेटा कलेक्शन। और इसके बाद फ्रॉम डे 1 टिल डे एंड एक हमारा केस रिपोर्ट फॉर्म होता है जो कि हार्ड में होता है। हम वी आर मेंटेनिंग बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ, लेकिन एक्चुअली जो हमारा डेटा एनालाइज होता है वो सारा का सारा डेटा कंट्रोल हो रहा है, मेंटेन हो रहा है थ्रू द ईडीसी टूल व्हिच इज द रेड कैप एंड द मेरिडेटा। Thank you so much, Dr. Sadia. My last question is there's lots of questions from the participants. My last question is, what are the factors that are associated with conducting bioequivalence study regarding its costing and budget? अच्छा, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस मामले में होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत, क्योंकि देखिए अगर हम कॉस्ट कंपैरेटिव करें तो हम लोगों ने डिफरेंट जो मेजर बी स्टडी सेंटर्स अवेलेबल हैं इस वक्त, जॉर्डन और मलेशिया के अगर हम देखें तो उनका कॉस्ट कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से अगर हम पाकिस्तान की कॉस्ट करें तो तकरीबन 5 स्टडीज़ आप पाकिस्तान में कंडक्ट करवा सकते हैं एज कम्पेयर वो कॉस्ट जो हमारी इंडस्ट्री बाहर पे कर रही है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जहाँ आप फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये होता है कि आप कौन सा एनालिसिस मेथड इस्तेमाल करें। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एचपीएलसी से एनालाइज होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको एनालिसिस की जाती है एलसीएमएस एमएस टेक्निक से। तो जितनी ज़्यादा एडवांस और सेंसिटिव टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। सेकेंड थिंग इज दैट सैम्पल साइज, क्योंकि देखिए ये सारी जो चीज़ें जो हैं वो आपका कंज्यूमेबल पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्टडी का सैम्पल साइज ऑफ कोर्स 78 या 90 या 100 प्लस है और किसी के सैम्पल साइज अगर 24 है तो उनका कॉस्ट में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा। तो सैम्पल साइज भी मैटर करता है, टेस्टिंग मेथड आपका मेथड डिपेंड करता है, स्टडी डिज़ाइन क्रॉसओवर है, पैरेलल है, 2022 क्रॉसओवर है। तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे कॉस्टिंग या बजटिंग जो है वो डिसाइड होती है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि हमारे वाइस चांसलर ने डाउ यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली मैं आपको ज़रूर ये बताऊँ कि उन्होंने एक वेवर दिया हुआ है आपकी ओवरहेड कॉस्ट का, जो कि जाहिर सी बात है सबको पता है कि एक बी स्टडी के ऊपर कॉस्ट आती है, लेकिन जस्ट टू फैसिलिटेट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्होंने हमारे वाइस चांसलर जो हमारे प्रोफेसर सईद कुरैशी वाइस चांसलर इन्होंने एक वेवर दिया है कि जस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस ताकि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट हो। और जाहिर सी बात है उनके पास एक जब एक ड्रैप की तरफ से एक रिक्वायरमेंट चाहिए तो उनको मीट करना भी ज़रूरी है। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने अपनी जो फिक्स कॉस्ट है उसको माइनस कर दिया है अपने बजट में से। अब जो हमारी कंज्यूमेबल की कॉस्ट है बेसिकली वो हम चार्ज कर रहे हैं डाउन में।
सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो वाइस चांसलर ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सपोर्ट के लिए लिया है, और इंडस्ट्री को भी डेफिनेटली इससे फायदा होगा। Thank you so much, Dr. Sadia. There are lots of questions from participants. I think we should first take the questions which are on chat. The number one question is, which countries are accepting Pakistan BE study centers studies? मेरे ख्याल से मुझे कभी चैलेंज अभी तक फेस नहीं हुआ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि नियर अबाउट 18 टू 19 ईयर्स मुझे हो चुके हैं इस फील्ड में, और अब तक हम लोगों ने जितनी भी स्टडीज पाकिस्तान से सबमिट किए, दे ऑल आर एक्सेप्टेबल। मैंने डिफरेंट कंट्रीज के लिए, आसान कंट्रीज के लिए काम किया है, और उसमें तमाम जो स्टडीज हैं वो एक्सेप्टेबल हुई हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई पाकिस्तान की स्टडीज। Thank you so much. It's question from Dr. Faryad. For a combination drug like BCS class 1 and BCS class 4 combination, is there any requirement for BE studies? If so, then how it is managed? देखिए, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हम एनडीटीबी के प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल को वेवर मिला हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल्स को वेवर नहीं मिला हुआ। जिनके लिए वेवर नहीं है उनकी भी स्टडीज आप परफॉर्म करेंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली एफडीसी इस्तेमाल होता है, जिसमें एग्जांपल आपको दे रही हूँ। डब्ल्यूएचओ का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपके पास रिफेम्पिसिन, आइसोसियाजिड, एथिम्बिटोल और रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरिज़माइड एंड एथिम्बिटोल, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एथिम्बिटोल को वेवर है, बाकी 3 मॉलिक्यूल्स को वेवर नहीं है। तो इस केस में अगर इस तरह के आपके पास जो कोई कॉम्बिनेशंस हैं और जो बीसीएस क्लासिफिकेशन 2 एंड 4 में फॉल करते हैं, तो उनकी आप बी करवाएंगे, और जो वेवर है उनका वेवर के लिए आपको जरूरत नहीं करवानी। Thank you so much. It's a question from Inamur Rahman. What would be the total timeline for one BE studies? Along with that, if we have fixed dose product and API are in a class 1 drug, so will it be required for BE as well? नो, बीस जैसे मैंने आपको बताया कि बीसीएस 1 के लिए आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, बिकॉज बीसीएस क्लासिफिकेशन शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी बैलेंस की स्टडीज की बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर उनकी एब्जॉर्प्शन और सब चीज़ें सही हैं, सॉलिबिलिटी ठीक है, तो देयर इज नो नीड कि आप इसको परफॉर्म करें। 2 एंड 4 के लिए मैंडेटरी है, तो आप करवाएंगे। जहाँ तक आप टाइमलाइंस की बात करते हैं, हमारे पास डाउ में जो टाइमलाइंस है वो 4 मंथ्स है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे आप अगर फिक्स डोज की बात करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल फैक्टर ये आ जाता है एनालिसिस का, लेकिन ये हमारी टीम, बायोलॉजिकल की टीम इस पे वर्किंग कर रही है कि उन सबको एक ही सिंगल रन में तमाम मॉलिक्यूल्स को निकाल दे, तो हमारे जो एनालिसिस की जो टाइम पीरियड है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। ये पहले ज़माने में होता था कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स डोज में, तो आपको थोड़ा टाइम लगता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है एलसीएमएस टेक्निक के बाद बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। अगर आप, मैं जैसे मैंने बताया, जितने ज़्यादा अच्छी टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, सेंसिटिव टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपसे उससे कॉस्ट ज़रूर बढ़ती है, लेकिन टाइम मिनिमाइज होता है। तो यूजुअल टाइम पीरियड जो जॉब ऑफर कर रहा है, इट्स अ 4 मंथ। Okay. We have another question from Amna. What is difference between BE center and CRO? देखिए, सीआरओ एक मेजर डोमेन है जिसके अंदर बीई स्टडी सेंटर भी आता है, ठीक है। सीआरओ की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सीआरओ वो इदारा है जिसको कोई भी क्लाइंट अप्रोच कर सकता है फॉर कंडक्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स। अपनी जिम्मेदारी स्पॉन्सर दे सकता है सीआरओ को, कि ऑन द बिहाफ ऑफ स्पॉन्सर सीआरओ जो है वो लुक आफ्टर करेगा उनकी एक्टिविटीज को। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करें, डिफरेंट सीआरओ इस वक्त रनिंग है, तो हमारे डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करें, डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं अपने या लोकल अपनी जिम्मेदारी जियारों को देती हैं कि उनका प्रोजेक्ट कंडक्ट करवाएं। तो बी जो है इट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सीआरओ आता है। तो सीआरओ एक मेजर टर्म है जिसके अंदर बी स्टडी और बाकी चीजें इंक्लूड होती हैं। नवीन, यू आर म्यूटेड। Sorry. It's a question from Fayaz. If any one pharma firm has did the BE study on one molecule, can any other firm use the same study for the submission in DRAP? नो, नेवर एवर। देखिए, ये इवन मैं एक और चीज भी आपको बता दूं कि हम उसमें बैच तक स्पेसिफिक करते हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री की बी स्टडी हम कंडक्ट करके देते हैं ना, तो वो बी स्टडी बैच स्पेसिफिक हम लिख देते हैं कि भाई अब देखें, उसके बाद अगर वो फार्मा इंडस्ट्री किसी क्वालिटी को फॉलो ना करे, तो उसकी जिम्मेदार बी सेंटर नहीं हो सकता। तो
हम अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं कि या प्रोटोकॉल में मेंशन करते हैं कि हमने ये स्पेसिफिक बैच अपनी बायोक्लियरेंस को डिक्लेयर करने के लिए या चेक करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक बैच इस्तेमाल किया। तो अब आप ये सोचिए, जब हम कंपनी स्पेसिफिक हो गए तो दूसरी कंपनी कैसे किसी की बी रिपोर्ट को यूज कर सकती है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। It's a question from Suzanne. Is biobehavior and bioequivalence study same? Please again ask. Is biobehavior and bioequivalence study are same? No. Biowaiver is another thing. Bioequivalence is another thing. Biowaiver, bioequivalence का आप कह सकते हैं कि उसके अंडर जरूर आता है, इस सेंस में कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वेवर मिला हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया जिनकी जो बीसीएस क्लास 1 में है उनको जरूरत नहीं है करवाने की, उनको वेवर है। इसके अलावा जैसे वेवर होता है, स्ट्रेंथ का वेवर होता है कि अगर आप हायर स्ट्रेंथ की अपने बी करवा लेते हैं तो लोअर स्ट्रेंथ को ऑटोमेटिकली वेवर मिल जाता है कि आपको उस हर स्ट्रेंथ की बी स्टडी करने की जरूरत नहीं। तो वेवर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि एंट्रेंस के अंदर आता है कि आपने बी स्टडी करवानी है या नहीं करानी है। तो बायो वेवर की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि आइदर इन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको वेवर है या नहीं है। ये सब चीजें ऑलरेडी रिटन है, गाइडलाइंस में अवेलेबल है, डिफरेंट एफडी की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि किन किन मॉलिक्यूल्स को वेवर मिला हुआ। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि बीसीएस क्लासिफिकेशन 1 है। स्ट्रेंथ की मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ मौजूद है, 250 है, 500 एंड 1000 है, तो आपको हर स्ट्रेंथ को करवाने की जरूरत नहीं है। आप 1000 की करवाएंगे बी स्टडी तो उन दोनों को ऑटोमेटिकली वेवर मिल जाता है। This is the question from Amna Ibrahim. What is the estimated cost ratio to BE study for a simple drug? देखिए, अगर मैं एक फिगर कोट कर दूंगी ना तो मेरी बात जो है ना पत्थर पे लकीर हो जाएगी। तो मैंने आपको जैसे एक सवाल अभी आया था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट आपको बताए हैं। आपका सैंपल साइज एलिमेंट होता है, मेथड एलिमेंट मेन एलिमेंट है कि कौन से टेस्टिंग मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं मोस्टली। अगर मैं रफली अगर आप बताऊं तो अंडर 3 मिलियन आपकी यूजुअली स्टडी परफॉर्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम चीजें फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अगर आप, अच्छा ये नहीं है कि स्पॉन्सर ने कहा कि सैंपल साइज आप कम कर दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सैंपल साइज स्टैटिस्टिशियन कैलकुलेट करता है, ठीक है, बाय यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। सो जो चीज हमारे जिसका लॉजिकल रीजन है, अगर 76 सैंपल साइज, 76 सैंपल साइज ही रहेगा, किसी की विल एंड विश पे सैंपल साइज रिड्यूस नहीं होता। ये भी चीजें आप थोड़ा सा माइंड में रखें जब आप बी स्टडी की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम इन फैक्टर्स की बात करें तो ये तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं आपकी कॉस्ट को। ठीक है, लेकिन रफली अगर मैं कहूँ तो इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं जाती फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल की। Okay. There's a question from Mohammad Rafiullah. Is there any comprehensive checklist used by IBPS which can help us whether BE study required for our any developing product? देखिए, आईबीपीएस ने कोई ऐसी चेकलिस्ट डेवलप अभी नहीं की है, लेकिन मैंने आपको बताया है डिफरेंट गाइडलाइंस मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन की है। आप उसमें से किस हर गाइडलाइन में ये सारी चीजें मेंशन हैं कि किन मॉलिक्यूल्स की बी स्टडी होगी, किन मॉलिक्यूल्स की बी स्टडी नहीं होगी, किनको वेवर है, किनको वेवर नहीं है। ये तमाम चीजें, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए शायद थोड़ा न्यू लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से बाहर किसी के लिए भी न्यू नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को, हाँ, अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो वी कैन गिव यू अ लिंक, वी कैन गिव यू दैट गाइडलाइन रेफरेंस जिससे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ रेफरेंसेस उसमें डाले हैं, तो उन गाइडलाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो गिव यू सपोर्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। Okay, so I think from the chat, this is last question because we have lots of participants who are waiting for their questions. The question is how to identify the BCS class of new molecule for BE study. डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिडिटी। देखें, आपका drugs.com पे इसकी पूरी स्टोरी लिखी हुई होती है। कोई भी मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल इनोवेटर प्रोडक्ट है इनोवेटर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर पूरी कंप्लीट स्टडीज होती हैं। आपने देखा होगा, अगर drugs.com की वेबसाइट को देखें तो उसके अंदर फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई होती हैं। तो उस केमिकल का कोई ना कोई नेचर होगा, फिजिकल नेचर होगा, केमिकल नेचर होगा, जिसकी बेसिस पे उसकी सॉलिबिलिटी और के बेसिस पे हम उनको बीसीएस क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी पे फॉल करेगा। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल होती हैं जिससे आप डेटा ले लेते हैं।
Thank you so much, Dr. Sadia. I would request participant if they have any question, they can ask. I think Imran Iqbal Alvi has raised the hand. Mr. Imran, if you have any question, you can ask. Okay, so moving forward to Dr. Faryal. Dr. Faryal, if you have any question. No question. So, Mrs. Naveen, Assalamu alaikum. This is Professor Sadia Shehzad from Lahore, from Sheikh Zayed Medical Complex. Can you hear me? Yeah. Okay. So I have a question for Dr. Sadia. In fact, three. The first one is that do you, I guess from your conversation that we are maintaining these patients as indoor patients for the bioequivalence study. Am I right? The people who we are doing. Can you please again ask your question because आपकी आवाज जो है ना बहुत clear नहीं है. अच्छा. Can you hear me now? आपको आवाज आ रही है? Quite better. Okay. So what I'm saying is that the people whom you have enrolled for the bioequivalence study, I am guessing that you are keeping them for some time as indoor patients, which means that they are going to get their food and everything in a monitored environment. Am I right? Correct. You are considering very rightly. Basically, because we have to keep them in our facility just to monitor them. Right. ठीक है, ये नहीं है कि हम उनको मेडिसिन देके उनको रवाना कर देंगे, ऐसा नहीं होता. बिकॉज ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट टाइप ऑफ स्टडी होती है कि हमने उनको मील भी जो देना है वो भी कंट्रोल देना है. ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो बहुत हाई फैट मील ले रहा है और एक दूसरा बंदा लो फैट मील ले रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो. हमने वो तमाम फैक्टर्स मिनिमाइज करने होते हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं. इवन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जिस रूम में हम उनको रखते हैं उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रखते हैं कि ऐसा नहीं कि दो जितने भी रूम्स हमारे हैं जिसमें हमारे वॉलंटियर्स कन्फाइंड होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वेरी करे. तो टेम्परेचर शुड बी सेम, द प्रोसीजर शुड बी सेम, द मील शुड बी सेम. इवन जो मील का टाइम होता है वो भी सेम होता है, सैंपल कलेक्शन का टाइम भी सेम होता है. तो एवरीथिंग शुड बी यूनिफॉर्म एंड सिंक्रोनाइज. ठीक है. Okay. And for how long can this last? For one bioequivalence study? आप अगर कंफर्मेंट की बात कर रहे हैं, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द यू कैन से द हाफ लाइफ. ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है तो उनका ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट होता है, 24 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाता है. बट सम टाइम जैसे अगर हम किसी भी सेडेटिव मॉलिक्यूल्स की बात करें हैं जिनका हाफ लाइफ अच्छी खासी होती है, 2 to 3 days होती है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कन्फाइन देम. अच्छा, उसके लिए भी थोड़ी सी गाइडलाइंस मेंशन है. अगर इस किस्म की जिनकी डिटेल जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है उनके लिए 3 हाफ लाइफ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 3 हाफ लाइफ तक उनको रिटेन करना है, देन यू कैन इजीली अलाउ देम टू गो. लेकिन यूजुअली हमें 7 हाफ लाइफ कंप्लीट करनी होती है फॉर नॉर्मल प्रोसेस, बट जिनकी हाफ लाइफ नॉमिनल होती है. ठीक है. ठीक है. दूसरा मेरा सवाल था यही कि व्हाट डू यू डू. देखिए, अगर क्योंकि ये तो आप मॉलिक्यूल जब जा रहा है इनटू द ह्यूमन सिस्टम तो दे माइट बी एडवर्स इफेक्ट्स. सो व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर सजेशंस रिगार्डिंग हाउ डू यू डू दैट कंट्रोल और योर ट्रीट योर पेशेंट्स अगर खुदा ना खास्ता किसी में नजर आए ऐसी चीज. देखिए, ऑफ कोर्स हम सब हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करते हैं. इस चीज को हमें कंसीडर करना चाहिए कि हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है. अगर टेक्निकली देखें तो शायद एक मॉलिक्यूल या एक डोज जो है वो ड्रग की टेक्निकली मे बी इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी एडवर्स इवेंट, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और एडवर्स इवेंट हो भी सकता है. तो उसके लिए क्या होता है कि हम पहले से ही वो तमाम चीजें हम अपने पास रेडी रखते हैं. जो हमारा कन्फाइनमेंट एरिया होता है जिनको हम वॉलंटियर हेल्थ केयर फैसिलिटी कहते हैं, हमारे पास उस ड्रग का एंटीडोट भी मौजूद होता है. उस ड्रग की तमाम एडवर्स इवेंट जो आईवी में मेंशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में मेंशन होते हैं कि इस मॉलिक्यूल की ये सारी चीजें मौजूद हैं, इनके ये एडवर्स इवेंट भी आ सकते हैं. तो उन तमाम चीजों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होती है.
इन केस अल्लाह ना करे कोई और बहुत सीरियस इवेंट हो जाता है, कोई अल्लाह ना करे कोई जिसमें इमरजेंसी में एडमिशन करने की ज़रूरत हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बीइंग अ पार्ट ऑफ डाउ यूनिवर्सिटी मेरे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये तमाम चीज़ें अंडर द वन अम्ब्रेला विद इन फ्यू मीटर डिस्टेंस पर हैं। तो हम एक बेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ ई स्टडी एंड द क्लिनिकल ट्रायल एक बेड हम रिजर्व करवाते हैं आईसीयू में कि इनकेस अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ मैनेज कर लिया जाए। एक इमरजेंसी का रूम हमारे पास अपना कंफाइनमेंट एरिया में भी होता है कि फॉर अ टेम्परेरी पर्पस जल्दी से हम कोई डिसीजन लेके पेशेंट को मैनेज कर लेते हैं या हेल्थी वॉलंटियर को मैनेज कर लेते हैं। इनकेस हमें लगता है कि ज़रूरत ज़्यादा है तो फौरी तौर पे हम वहाँ पे उनको मूव कर देते हैं। ये तमाम वो तैयारी होती है जो हम करके रखते हैं पहले से फॉर द सेफ साइड। लेकिन अब तक के इतने तजुर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्स इवेंट हुए हैं, बट you should be ready for that. You are absolutely right. ठीक है, thank you so Thank much. you so much. Thank you. Thank you so much, Dr. Sadia. Any other question? Can I add something? Yeah, why Yes, sir. not? Please. आप देखें, मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स का। प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम अहमद वाज माय टीचर और इससे काफी ऐसा तो मेरे भी उस्ताद हैं वो, मेरे भी उस्ताद हैं, मैं आपको बताऊं। जी अब मेरे तो उनसे बहुत स्पेशल ताल्लुकात फिर बाद में रहे काफी अर्सा और अभी भी हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि एक तो काबिल मुबारकबाद हैं आप। इट इज़ अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। लेकिन एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉस्ट की किसी ने कोई क्वेश्चन किया था, तो देखें ह्यूमन लाइफ से बढ़कर कोई कॉस्ट नहीं होती। तो जब आप बायोकोलेंस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये तय करते हैं कि किसी को या आप ये बताते हैं कि ये दवा इसके बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको हम करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नो डाउट। अच्छा, जो कंपनीज जो कंडक्ट कराती हैं बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, तो उसके बेस के ऊपर ये बिलियन डॉलर्स अर्न करती हैं। तो और तो यहाँ पे अगर कोई 2, 4, 5, 10, 20 लाख वो दे देते तो ये कोई इतना महंगा सौदा नहीं है। अच्छा, सर एक चीज बस आपसे पूछना चाह रही थी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले आप जरा ये बताएं ताकि मैं आपकी दो जुमले जरूर आपको तारीफ में बोलूंगी इस बात के लिए। अच्छा, इस वक्त तो मैं तबरोज का प्रोजेक्ट हेड हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन मेरा बेशतर टाइम जाफा में गुजरा। वहाँ का मैं जनरल मैनेजर, मैंने काफ़ी अर्सा 20 साल तकरीबन काम किए और उनकी 9 फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान, सूडान में भी एक फैक्ट्री लगाई, हमने काम किया। और बायोइक्विवेलेंस का काम जो है, बायो फार्मास्यूटिक्स का काम प्रोफेसर साहब के साथ हमने तवील अर्सा काम किया, एक लैब भी कायम करी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो आपको तो एडवांटेज है, करीब में एक हॉस्पिटल है, लेकिन एट द टाइम व्हेन वी वर कंडक्टिंग दिस बायोइक्विवेलेंस स्टडीज, तो हम एक इमरजेंसी हॉस्पिटल, एक बेड का पूरा इंतजाम रखते थे, जहाँ पर जो है कम से कम 2 डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते थे और इमरजेंसी की सारी चीज़ें होती थी। हॉस्पिटल के अंदर जो है लियाकत नेशनल से करीब तरीन था, तो हम वहाँ पर भी जो है वो अलर्ट रखते थे, एक बेड हमारे पास होता था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी कोई पोजीशन आई नहीं, लेकिन जो है ना ये इसका प्रोटोकॉल के अंदर शामिल है। प्लस जो वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं तो उनकी इंश्योरेंस भी हुआ करती थी, तो उनकी इंश्योरेंस भी होती थी। बिल्कुल सर। और ये उनको जो डाइट है, उनको जो पानी है, ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग उनकी जो ना कंट्रोल्ड होती थी और उसको हम चेक करते रहते थे। तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो जिन्होंने भी कॉस्ट की बात की, एक तो इसमें ह्यूमन लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड, और दूसरी बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स यू विल अर्न बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स। तो इसमें ये नहीं करें। और दूसरी बात ये, जो कंट्रीज लाइक हमारा पड़ोसी मुल्क में नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ से स्टडीज होती हैं, लेकिन रिलायबिलिटी ऑफ दैट स्टडी जो है ना वो क्वेश्चनेबल है।
मैं कई दफ़ा वहाँ गया हूँ और कई टेक्निकल कामों के सिलसिले में, तो वो इतने कोई रिलायबल लोग नहीं हैं। जी, शुक्रिया आपका। सर बाकी मैं आप पहले तो वाकई मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपने जिन इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया है और उसमें रहते हुए आपको अगर बायोगैस का अगर आपको आइडियाज़ है, तो ये तो मैं कैसे हैट्स ऑफ टू यू कि आपने लोकल इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए इन चीज़ों इसकी अहमियत को समझा। क्योंकि ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम कॉस्ट की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये देखें उसका दो मेजर बेनिफिट आप देखें बायोक्लिन्स के, जैसे मैंने बार बार प्रेजेंटेशन में बोला कि इतना बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट इन लो कॉस्ट मार्केट में देंगे। अब अपने पाकिस्तान के का हाल तो देखें सर, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, आटे के लिए पैसा नहीं है, वो अपने ऊपर 1000 रुपए क्यों बर्बाद करेगा? एक बाप या एक भाई या एक शौहर क्यों बर्बाद करेगा? लेकिन अगर वही क्वालिटी की मेडिसिन को 100 रुपए की मिलेगी तो शायद वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचे। इस वक्त जो सर हमारे मुल्क का हाल है उसमें हमें ज़रूरत है, और मुझे तो लगता है कि सर ड्रैप का ये जो स्टेप है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। और ये अगर ये इंडोर्स वाकई में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है तो पाकिस्तान में भी सर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी। और जहाँ तक कि पैसे का सवाल है सर, वाकई में मतलब ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 30 लाख 40 लाख रुपए अगर आप वन टाइम एक इंडस्ट्री स्पेंड करती है, उसके अगेंस्ट आप बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स आप कमा रहे हैं। और ये जो बी स्टडी की जो रिपोर्ट होती है वो सिर्फ आपको पाकिस्तान में जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इंटरनेशनली भी, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं आपको खुद कह रही हूँ कि मैंने जितनी भी स्टडीज यहाँ कंडक्ट कराई हैं या मैंने कराची यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराई हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है सर जो रिजेक्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर इजीली एक्सेप्टेबल टू द इंटरनेशनल कंट्रीज, और वो सेल करें जिन्होंने फायदा उठाया है पाकिस्तान की बी सेंटर से, दे आर अर्निंग अ लॉट। अगर आप उनसे पूछें तो दे आर एंजॉयिंग दैट बिजनेस। Thank you so much, Dr. Saadi and Dr. Mukhtar. Thank you. We have a question from Shehroz. Ji, thank you very much. Assalamu alaikum. This is Dr. Shehroz Javed. First of all, I would like to present my heartfelt gratitude for such an useful, insightful session by Dr. Sadia. And secondly, मेरा question तो नहीं, I am very much junior for this, but I just want to add to this healthy discussion. Okay, ma'am, when we are talking about the clinical programs and the bioequivalence studies, we have two phases, that is an in vitro phase and an in vivo phase. And definitely आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, अपने सवाल को रिपीट कीजिएगा। इन विट्रो इन विवो तक तो मैंने सुन सकी हूँ, उसके बाद आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी शहरोज, पॉसिबल है तो आप चैट पे लिख लें, क्योंकि मुझे थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं थी, या आप रिपीट कर दें अपने क्वेश्चन। I think we should take the next question. Shehroz, please wrote your question in the chat box. Okay. So another question from Neutro Pharmaceutical. audible. Okay. So next question from Imran Iqbal. Am I audible now? Yes, you are audible. Please repeat your question. Shehroz, please wrote your question in the chat box. I will ask from Dr. Sadia. Dr. Imran, if you can please ask your question, or we should move forward. I think Dr. Imran is not available right now. So Dr. Ikra. I think please unmute me. Okay. जी वालेकुम सलाम इकरा। Dr. Sadia, my question is that is there any accreditation of DAO from other countries lab
लाइक हमारी जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो पाकिस्तान की बी के लिए शायद एक्सेप्ट नहीं करती। लाइक हमारे पास उज़्बेकिस्तान से रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपकी जो लैब्स हैं या जो आपके CROs हैं उनकी जो भी लैब्स कंडक्ट हैं यहाँ पर, उनकी एक्रीडिएशन होनी चाहिए वहाँ की भी रेगुलेटरी बॉडीज से। अच्छा, देखिए राइट नाउ अभी हमने जो एक मेजर जो स्टेप लिया है अडाव में वो ये कि जो हमारी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है वो हम प्री क्वालिफिकेशन WHO प्री क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी जो लैब है वो ISO सर्टिफाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मेजर चीज़ ये होती है। सेकंड थिंग इज दैट वी आर आल्सो गोइंग फॉर WHO प्री क्वालिफिकेशन। सेकंड हमारे लिए ये। थर्ड ये कि अगर आपकी जिस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ आप सबमिट कर रहे हैं, अगर उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जी उनकी कंट्री में रजिस्ट्रेशन हो या ऐसे एक्रेडिटेशन हो, तो वी मे गो फॉर इट। ठीक है, राइट नाउ हमने किसी स्पेसिफिक कंट्री से एक्रेडिटेशन नहीं ली है, हमने एक जर्नलाइज अपना फ्रेमवर्क पे काम किया है जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने ट्रेनिंग अपनी जॉर्डन से ली है तो मैंने इस किस्म की ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं देखी कि किसी और कंट्री में एक्रेडिटेशन उनके लिए ज़रूरी थी। वो सिर्फ JFDA को फॉलो करते थे, जॉर्डन FDA को। तो हम सेम द केस विद अस, हम लोगों ने अपनी जो मिनिस्ट्री को फॉलो किया है। लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई की, जिसके अंदर ISO 17025 मेजर रिक्वायरमेंट है हमारी। WHO प्री क्वालिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं ताकि एक कॉन्फिडेंस हमारी इंडस्ट्री को नजर आए। और ताकि तीसरी चीज मैं आपसे कह रही थी, जो भी आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जिनको आप फोकस कर रहे हैं, अगर उनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वी में आल्सो गो फॉर इट। हम स्पेसिफिकली उस कंट्री के लिए काम कर सकते हैं, हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेंगे इसके लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एक्रेडिटेशन टू स्पेसिफिक कंट्री। Okay, thank you so much, Dr. Sadia. Thank you so much, Ikra. So moving forward to Hafsa Rizvi. Hi, am I audible? Yes, Yes, you are. Okay, ma'am, my first question is that is PE is applicable on radiopharmaceutical? On radiopharmaceutical, Yes. Is it applicable on radiopharmaceuticals? let me check. मैंने आज तक कभी भी स्टडी इस किस्म की नहीं देखी है। All right. Okay, and my second question was that as a manufacturing pharmaceutical facility, what are the prerequisites जिस पे हमें काम करना चाहिए before the submission of application? मतलब I have got it कि हमें पहले आपको approach करना होगा, फिर एक mutual agreement के साथ हम आपको एक application जो है वो submit करवाएंगे, जो आप आगे मज़ीद उस पे प्रोसेस करेंगे। बट अगर मेरी प्लानिंग में आज से स्टार्ट हुआ है कि मुझे एक BE जो है वो उसका प्लान करना है और आप लोगों से जो है वो आप लोगों को अप्रोच करना है, तो बिफोर अप्रोचिंग यू हमें एज अ फार्मास्यूटिकल फिल्म किन किन पैरामीटर्स पे काम करके रखना चाहिए टू जस्ट सेव आवर टाइम के आगे आप लोगों की तरफ से इस तरह की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई रिक्वायरमेंट आती हो या हम पहले से ही काम करके रखें? देखिए कोई ऐसी कोई मेजर रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, लेकिन एक सवाल अभी शहरोज भी पूछ रहे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि सवाल शायद इनका ये था कि दो किस्म की स्टडीज होती हैं, एक इन विट्रो होता है, एक इन वीवो होता है। देखो इन वीवो एक एक्सटेंसिव स्टडी है, उसके अंदर ह्यूमन मॉडल इस्तेमाल होता है। तो ह्यूमन की एक लाइफ है ना, मतलब हम किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आपकी जो गाइडलाइंस है ना वो ये कहती हैं कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इन वीवो बायोक्लिनिकल स्टडी you should perform and it is mandated to perform the in vitro analysis, जिसका हम comparative resolution profile की बात करते हैं। इनिशियली क्या होता है कि हम डायरेक्टली जब आपके पास आप लोगों के पास सिक्योरिटीज हमारे पास आती हैं तो हम डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर देते उस पर काम करना। हम पहले अपने पास उसका कंप्लीट COA परफॉर्म करते हैं, उसका CD भी परफॉर्म करते हैं रेफरेंस प्रोडक्ट का, जिससे आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जिस कंट्री में आप उसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उस कंट्री का जो रेफरेंस प्रोडक्ट है उसके साथ हम उस प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को प्रिपरेशन की फेज पे गुजारना है, यू मे आल्सो डूइंग फॉर योरसेल्फ, लेकिन हम आपके प्रोडक्ट पे आपके रिजल्ट पे रिलाई नहीं करते। बीइंग अ CRO, बीइंग अ BE स्टडी सेंटर, हमारा ये प्रोटोकॉल है कि हम पहले इन विट्रो पूरी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, CD भी परफॉर्म किया जाता है। अगर जो गाइडलाइन हमारी WHO की गाइडलाइन कहती है कि 50 मिनट्स में जबकि रेजोल्यूशन 85% हो जाती है, तो फिर हम उसको इस बी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट इन विट्रो ही गलत आ रहे हैं, उनके रिजल्ट आपका प्रोडक्ट की कंपैरिजन ही नहीं है रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ, नियरेस्ट भी नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू गो फर्दर।
तो यहाँ पे इस स्टेप पे हम पहले आपको इन विट्रो परफॉर्म करके अपना डिसीजन दे चुके होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आते ही हम इन विवो की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे स्टेप से प्रोटोकॉल है कि फर्स्ट हम इन विट्रो परफॉर्म करते हैं एंड देन इन विवो करते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के हवाले से बात करना चाह रही हैं तो आई थिंक यू मे आल्सो डू दिस एट योर ओन एंड। लेकिन बस ये कि हम उस पर रिलायबिलिटी से नहीं दे देते क्योंकि हमारा अपना प्रोटोकॉल है, हम दोबारा से वो परफॉर्म करेंगे और हमारी अपनी रिपोर्ट की जजमेंट की बेसिस पे हम बी की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज उसको फिर मूव नहीं किया जाता। Okay, got it. Thank you so much for your time. Okay. Thank you so much, Hafsa. As we have a time constraint, we should take the questions. Nimra, it's Nimra Arshad. Okay. Can you hear me? Yes. Yes, we can Okay. hear you. Okay, ma'am, this is Nimra, Manager Regulatory Affairs from Harbion. मेरा ये कुछ क्वेश्चन ये है कि हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो बी स्टडीज की आप लोग के ऊपर इसके से रिलेटेड क्या इंटरवेंशन हैं, यानी उनकी क्या जो है बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्मा में हम लोग एसओपीस और स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं वैसे ही हर्बल के लिए भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर्बल के अंदर बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स एंड बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड आप लोग इस बारे में आप क्या कहती हैं, और क्या ऐसे एडिशनल स्टेप्स होते हैं जो फार्मा के अलावा भी हमें करने पड़ते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अलावा? आई थिंक नवीन, मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं जो हमारे रेगुलेटरी के जो लोग हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक रहा है। तो मेरे ख्याल से दे कैन गिव यू अ बेटर आंसर। मेरे पास तो इतना अभी हर्बल प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस सॉरी टू से नहीं है, मैंने कभी हर्बल प्रोडक्ट्स का भी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कशन में आती हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें हैं और अभी तक मेरे ख्याल से जैप की तरफ से भी हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए बी की क्या रिक्वायरमेंट है, भी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो नवीन, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर। Nimra, for herbal products, we mostly perform clinical trials phase 4 studies. If you have a marketed products, so we perform the clinical trials for phase 4. क्लिनिकल पर तो अब अभी आप लोग के पास इस तरह की ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं। अगर हम अपनी बी स्टडीज या कुछ स्टडीज करवाना चाहें तो आप लोग इस चीज़ पे फैसिलिटेट करवा सकते हैं, क्योंकि हम असल में CIS रीजन्स में जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो मेजरली वहाँ से हर जगह से अब जो है वो हमारे पास हर्बल के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि हमें बी स्टडीज करनी है और हमें इनकी स्टडीज हमें प्रोवाइड करनी है। तो ऑब्वियसली अभी ये थोड़ा सा एक हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में इस वक्त इतनी जो है वो स्टडीज इंटरवेंशंस नहीं हुई हैं, तो इस रिलेटेड आप लोग मतलब भी स्टेप्स कर रहे हैं, इनके ऊपर स्टडीज कर रहे हैं? If you can share your product profile, so we can share the details that what type of study we can perform on your product based on your own product. अगर आप प्रोडक्ट प्रोफाइल हमसे शेयर कर दें तो हम आप उसमें फैसिलिटेट कर देंगे कि हम इसमें कौन सी स्टडीज कर सकते हैं। निम्रा, काफी सारी की प्रोडक्ट्स मैंने आपसे बताया जब से ये चीज इंडोर्स हुई है जैप की तरफ से, तो काफी सारे क्लाइंट्स अभी इस वक्त पाइपलाइन में हैं जिनकी इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप हमें बात करेंगे, वी आर फैसिलिटेटिंग देम एज वेल। तो अगर आप भी जैसे नवीन आपसे कह रही हैं, आप डिटेल्स हमसे शेयर कर लें तो हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकेंगे कि इनकी बी स्टडीज पॉसिबल है या नहीं है, या हम फेज 4 की तरफ जाएंगे तो हाउ मच एंड व्हाट वी कैन फैसिलिटेट यू, वी कैन इजीली गिव यू दैट आंसर। श्योर, ओके वे फिर हम लोग इस चीज़ पे आपके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर आगे फर्दर हम क्या कर सकते हैं। प्लस फार्मा से रिलेटेड भी मेरा एक हम लोगों ने एक चीज़ मैं फेस की थी, अभी आपने बताया था कि जो बायोवेवर होती हैं, बायोवेव में हम ये करते हैं कि जो BCS क्लासिफिकेशन 1 और 3 में प्रोडक्ट्स फॉल करी होती हैं उनको उनमें हमें बायोवेव मिल जाता है। तो हमारी एक ऐसी ही प्रोडक्ट थी जो हम लोग अपनी CIS में लेके गए बायोवेवर के साथ, बट वहाँ से स्पेसिफिकली एक लोकेशन से हमारे पास ये आई कि आपकी जो एक्सीपिएंट्स हैं उनमें एक ऐसा एक्सीपिएंट मौजूद है जो आपकी सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट दे रहा है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ की बायोवेव को नहीं एक्सेप्ट किया एंड हमें उसके लिए ये कहा गया है कि हमें इसको बी कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो मतलब इट्स मीन दैट ये कि एक्टिव से रिलेटेड नहीं, हमें एक्सीपिएंट्स को भी अपनी प्रोडक्ट की जो है उसको भी देखना पड़ता है। ये जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा मैंने आपको एक और भी बताया था बीच में कि अब आपके पास ये सारी चीजें ना डिटेल में लिखी हुई हैं। पहले ये चीजें इतनी डिटेल्स में नहीं थी, बट अब डिफरेंट गाइडलाइंस में ये मेंशन है। पहले ये था कि बहुत सारे लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिटन थे ऑलरेडी कि भाई इनको वेवर है,
ठीक है, लेकिन है। जिस तरह आपने एक बात बताई ना, इस तरह एक और भी एग्जांपल हमारे साथ अभी हो चुकी थी बीच में, तो उसमें भी इसी तरह का था, बिकॉज देखो एक्सिपिएंट जो है ट्रिगर तो करेंगे ना एब्जॉर्प्शन को, उसको इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेंगे ना, एपीआई नहीं प्रॉब्लम कर रहा, बट एपीआई की सॉल्युबिलिटी परमिबिलिटी बोथ आर करेक्ट, वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन एक्सिपिएंट में इंटरफेयर में ट्रिगर द चेंजेस इन एब्जॉर्प्शन। तो उस किस्म के केस में क्या हुआ कि आल्दो वो मॉलिक्यूल आ रहा था बीसीएस क्लासिफिकेशन 1 में, अच्छा वो था एक जो उसका कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट था, एक था बीसीएस 1 में, एक था बीसीएस 2 में। अब इधर भी थोड़ा सा एक चैलेंज आ जाता है कि भाई एक है एक नहीं है, तो फिर हमने क्या कि जो कैटेगरी 1 में था उसको वेवर था, उसमें नहीं किया, बीसीएस जो 2 में आ रहा था उसको हमने पूरा परफॉर्म करके इनको दिया। तीसरी चीज ये थी कि जो दूसरा मॉलिक्यूल जो था उसमें आपके साथ जैसा केस था, तो इस केस में क्योंकि एक रैशनल था व्हाई वी आर डूइंग बी स्टडी, तो रैशनल हमारे पास ये था कि बिकॉज एक्सिपिएंट is producing the impact on the absorption of the drug product. On absorption, That's why right. we have performed that BE study. Okay, right. Right. Thank you. That's from all from my side. Thank you so much, Nimra. I think it's Nimra. It's Hafsa. Oh. So my next question from Mudassir Altaf. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. Yes, you are. मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन द पास्ट हाउ मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव डन बी इन डॉ फैसिलिटी, एंड वो कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही हैं या रजिस्टर हो चुकी हैं? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ यू आर प्रोक्योरिंग और मेंटेनिंग द इन्वेंट्री ऑफ इनोवेटर सैंपल्स, क्योंकि फ्रीली तो अवेलेबल नहीं होते। सो मेरी ये दो सवाल हैं। अच्छा देखिए, पहला जो सवाल है उसमें काफ़ी सारी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया है, बी स्टडीज हमारी परफॉर्म हो भी चुकी हैं, लेकिन बीच में एक गैप हमारे पास आया था 2017 से टिल 2023 बिकॉज ऑफ द वन क्लॉज मेंशन इन अ फॉर्म 2A, जो ड्रैग का बायोस्टडी रूल का एक फॉर्म था जिसके अंदर COPP GMP सर्टिफिकेट की का क्लॉज मौजूद था फॉर द रेफरेंस प्रोडक्ट एज वेल। उसकी वजह से बहुत जितने भी बी स्टडी सेंटर पाकिस्तान में रन करें उनमें से किसी के पास बी स्टडीज नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे लास्ट ईयर 2023 में ये चीज़ क्लॉज वहाँ से डिलीट हुआ है और दोबारा से अमेंडमेंट आई है बायोस्टडी रूल्स में, तो बहुत सारे अभी मेरे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाइपलाइन में हैं जिनको ऑलरेडी डाओ फैसिलिटेट कर रहा है और अभी कर चुका भी है, कर रहा भी है, बट मैं उनका नाम कोट नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि किन कंट्रीज के लिए करें, तो मोस्टली आसियान कंट्रीज के लिए उन लोगों ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मेरे अब तक की यहाँ की बी स्टडीज हैं वो उन तमाम आसियान कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल हो रही हैं। मैंने कभी भी अब तक कोई रिजेक्शन नहीं देखा अपने होल एक्सपीरियंस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन अबाउट इनोवेटर सैंपल्स की जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? Naveen, I think you should have a better answer as compared to me because you are dealing nowadays all these issues. जितनी भी हमारे अभी बी स्टडीज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो नवीन इज लुकिंग आफ्टर द होल प्रोसेस, क्योंकि इम्पोर्ट परमिट अप्लाई करती हैं ये, एंड देन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से, जिन कंट्रीज में उन हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करेंगी अल्टीमेटली उनकी जगह जो रेफरेंस प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सो शी इज डूइंग दिस, आई थिंक शी कैन गिव यू अ बेटर आंसर। नवीन प्लीज help him. Yeah, sure. Basically, depending upon the reference product, we procure from, it was the responsibility of sponsor. Sponsor is responsible for procuring of reference product. And we are also support them that if we get some connection that can provide us the reference product, we support them. But the main responsibility to procure the reference product is from sponsor. Like pharmaceutical companies provide us the reference product. Thank you so much for the clarity. Thank you. Thank you so much. Fayaz Munir, I think your question is done, or you have some another question? Miss, this is Fayaz. I am from Neuropharma, Lahore. Basic question मेरा ये था कि कोई specific molecules हैं ड्रैब की तरफ से जिनके ऊपर आप लोग मतलब स्पेसिफाइड हैं कि इन मॉलिक्यूल्स पे आप काम करते हैं, या किसी भी मॉलिक्यूल्स पे काम कर रहे हैं या आपने किया हुआ है? जो MNCs है मल्टीपल, आपने उन पे कोई MNC आप मेंशन कर सकते हैं जिन्होंने आपसे करवाया वो स्टडी?
नहीं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, दोबारा सवाल पूछेंगे प्लीज। क्वेश्चन मेरा ये है कि ड्रैप की तरफ से भी कोई आपको मतलब स्पेसिफिक लिस्ट होती है मॉलिक्यूल्स की कि आप इन मॉलिक्यूल्स पे स्टडी कर सकते हैं, या कोई ऐसा हम मतलब जो कोई भी मॉलिक्यूल हम प्रोवाइड करेंगे तो आप उस पर स्टडी कर देंगे? Yes, it's also depend on BCS classification, as Dr. Sadia has already gave information in her presentation. आपके जो भी molecules होते हैं वो BCS class पे depend करते हैं, और ड्रैप की तरफ से कोई इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन हम BCS क्लास से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इसकी बायोइक्विवेलेंस होगी या नहीं होगी. I think my answer is clear to you. Or Dr. Sadia, if you want to add something. Yeah, you are absolutely right, because ड्रैप आपको लिस्ट थोड़ी देगा कि इनकी आपने करनी, इनकी नहीं करनी. जैसे मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई हैं, अगर आपके प्रोडक्ट उन तमाम 5 कैटेगरीज में फॉल करती है या किसी भी कैटेगरी में फॉल करती है तो आप डेफिनेटली बी स्टडीज भी करवाएंगे. जहाँ वेवर है, वेवर का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, इस तरह के लिस्ट मॉलिक्यूल्स के अवेलेबल है जिनको वेवर मिला हुआ है, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन ड्रैप आपको नहीं करेगा कि आपको लिस्ट नहीं देगा कि किनकी स्टडीज करनी, किनकी नहीं करनी. तो ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश है, गाइडलाइंस में अवेलेबल है, आपको तमाम इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिल जाती हैं जिनका वेवर है, जिनकी बी स्टडीज रिक्वायर है. मैंने आपको जनरलाइज 5 डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं जिनमें आपका अगर मॉलिक्यूल फॉल करता है तो यू शुड गो फॉर इट. ठीक है. Okay, one more thing. If anybody, any pharmaceutical have a problem in identifying the BCS class, we can give support to them. Just send us your query, we will respond them. Okay? This support we can give you. Okay, so Kumail. It's Kumail, right? I think he's not here. Saad Saqib, if you have any question, it's जी माय क्वेश्चन इज दैट मतलब ऑलरेडी ये डिस्कस तो हो गया था मिस सादिया से, बट ये है कि अगर फिक्स्ड कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है जो मतलब कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आ रहा है मिस सादिया, तो उनकी बायो इक्विवेलेंस यानी एक एपीआई अगर आपका बायोवेवर है और एक बायो इक्विवेलेंस को लाई कर रहा है, ठीक है, आपने कहा है कि हम लोग उसको सेपरेट कर लेंगे, लेकिन जब इन विट्रो में जाते हैं तो हम तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को सीडीपी में लेके जाते हैं डायरेक्टली, तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे, मतलब ड्रैप एक्सेप्ट करें इसको एक एपीआई की बायोवेवर दे रहे हैं और एक ही इक्विवेलेंस, क्योंकि हमने तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट देना पेशेंट को, तो उधर कहाँ जस्टिफाई करेंगे इस पॉइंट को? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको अभी भी बताया कि 2-3 एग्जांपल्स आपसे शेयर की जो अब तक के मैंने एक्सपीरियंस में देखा है. आपको मैंने एनडीटीबी की एग्जांपल दी थी कि एनडीटीबी में प्रोडक्ट में 4 कॉम्बिनेशन जिसमें इथेनॉल को वेवर था सिर्फ, तो इथेनॉल की हमने नहीं करी और 3 मॉलिक्यूल्स की हमने बी स्टडी करके दी है. ठीक है, तो ये चीजें जो है. अच्छा, जहां तक आपके सीडीबी के बाद सीडीबी इज ऑल्टरनेटिव, जब बिल्कुल भी नहीं इनकी भी हो सकती तो कोई ना कोई कंपैरिजन तो होगा ना. तो सीडीबी इज ऑल्टरनेटिव ऑफ द बायोइक्विवेलेंस. जब आप बायोइक्विवेलेंस जिन मॉलिक्यूल्स का नहीं हो सकता वहां पे आप सीडीबी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, और वहां पे भी वही सेम चीज अप्लाई होती है कि इसी तरह आप ग्राफ बनाएंगे एंड देन डिक्लेयर करेंगे बोथ प्रोडक्ट आर बिहेविंग सेम और नॉट. लेकिन वेवर और सीडीबी में कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वेवर का मैंने आपको बता दिया कि जिन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनका आप नहीं करेंगे. लेकिन दूसरी एग्जांपल मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक और जो खातून थी जो किसी फार्मेसी से बिलोंग करी थी, उनको मैंने यही जवाब दिया था कि सम टाइम क्या होता है कि ऑलरेडी वो वेवर के लिस्ट में होती हैं, बट उसका जो एक्सीपेंट है इट्स इम्पैक्टिंग ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, तो आप उसका फिर बी स्टडीज जो है वो परफॉर्म करेंगे. तो डिपेंड करता है कि जो जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वो उसकी लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, या उसका मॉलिक्यूल का कोई भी एक्सीपेंट इम्पैक्ट कर रहा है तो यू शुड गो फॉर इट. अदरवाइज वेवर की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, बीसीएस क्लासिफिकेशन की लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है, किन के लिए आपको सीडीबी परफॉर्म करना है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द बी स्टडी. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much, ma'am. If you have more 15 minutes, so we can take your time and having some more questions because there's a list of questions. Okay, you may ask any question. Thank you so much. I have a question in chat box. It's chemotherapy
therapeutic drugs can also go under BE studies for minimizing their cost? आई थिंक ये चेक करना पड़ेगा कि अगर उस कैटेगरी क्या है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। कीमोथेरेपी प्रोडक्ट्स जो है वो मोस्टली डिजीज पेशेंट के अंदर रिकमेंडेड होती है कि आप डिजीज पेशेंट के अंदर करें, बिकॉज हेल्दी वॉलंटियर्स के अंदर आप करना इसके लिए थोड़े से पॉसिबल नहीं होता। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप BE स्टडी जो है वो हेल्दी के अलावा डिजीज पेशेंट में रिकमेंडेड होता है, और हाउ हम फेज 4 से भी इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यू मे फर्स्ट नीड टू चेक the classification of that molecule. Okay, so another question is, what are the parameters that needs to be addressed during formulation studies to make BE successful? फॉर्मुलेशन देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हम जो बार-बार हम बात कर रहे हैं BC क्लासिफिकेशन, वो किसके बेस के ऊपर कर रही है? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे कर रही है ना, ठीक है। तो अगर हमारी इस कैटेगरी को, इसका मतलब ये है कि आपको इन्हीं फॉर्मुलेशन पे काम करना है। देखिए जैसे एक और भी एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी थी कि हम डायरेक्टली बायोकेमिकल स्टडी स्टार्ट नहीं करते, ये इन्हीं तमाम इश्यूज की वजह से ये चीज़ें गाइडलाइन में आई हुई हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करना होता है इन विट्रो एनालिसिस। इन विट्रो के अंदर आप जो है वो कंपैरिजन करते हैं, देन नीड टू चेक कि आइदर द बोथ प्रोडक्ट्स आर बिहेविंग द सेम और नॉट। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर इन विट्रो ही सिमिलरिटी नहीं दे रही है, तो इट्स मीन यू नीड टू चेक अगेन द डिफरेंट एक्सटीरियंस। आपको डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे काम करना पड़ेगा, आपको डिसीजन टाइम पे काम करना पड़ेगा, या एक्सीपेंट को चेंज करेंगे। तो फॉर्मुलेशन में आपको जो आइडिया हो जाता है वो आप इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म करके आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस पैरामीटर्स पे काम करना है। समहाउ देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक खातून ने पूछा था कि हम कौन-कौन सी चीजें प्री रिक्विजिट कर सकते हैं। यू मे आल्सो परफॉर्म दिस CDB कंपैरिजन एट योर एंड एज वेल, ठीक है। आप लोगों के पास भी इंडस्ट्री में भी 8 बास्केट मॉडल मौजूद होता है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी फिर वो एग्जांपल दी कि अगर हम BE डिक्लेयर करने जा रहे होते हैं तो हम आपके रिजल्ट पे रिलाई नहीं करते, हम आपको अगेन परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारा जो उसका जो एजेंडा कह लें, या इसका जो बेसिकली पर्पस है परफॉर्म करने का, वो यही है कि हम एक एक्सटेंसिव BE स्टडी स्टार्ट करने जाएं इन विवो ह्यूमन मॉडल पे। इससे पहले उन रिजल्ट्स का इन विट्रो कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट इन विट्रो में ही फेल हो जाएगी, अगर वो आपका रिजल्ट कंपैरेबल नहीं होगा टू द रेफरेंस प्रोडक्ट, देयर इज नो नीड टू परफॉर्म। आप क्यों ह्यूमन बॉडी को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास ऑलरेडी प्रीरिक्विजिट अवेलेबल हैं जिस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। Okay. So it's a question from Kumail. Do parental drugs bypass the BE studies? हाँ, ऑफ कोर्स पेरेंटल का तो है ही, आपको पता है, वो तो उस कैटेगरी में आती नहीं है। सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स पे BE स्टडी होता है जिनका सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन होता है, जो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द BE स्टडी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फेज उसको मिला ही नहीं ना। मोस्टली जो ओरल रूट की मेडिसिन होती हैं, दे आर मोस्टली रिकमेंडेड, या वो रूट्स जिसके अंदर सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है, उन तमाम रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए BE रिकमेंडेड होती है। Thank you Sorry so for much, Dr. interruption. Can I ask my question, Naveen? Sorry for interruption. Yeah, sure, Shahroz, you can. Okay, thank you. This is Dr. Shahroz Javed, and first of all, I would like to present my heartfelt gratitude for such an insightful session with Dr. Sadia. Actually, I have 3 of questions. My first, it's not about a question; it's all about a healthy discussion right now. I want to ask firstly that when we are talking about the clinical research and the bioequivalence and the bioavailability studies, we have 2 phases now: in vitro and in vivo. For in vitro, definitely we'll follow the dissolution profile, disintegration profile, and a lot of that. Sorry. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So we have 2 phases. In vitro, definitely in vitro, we are talking about the dissolution or the disintegration profile. But when we have the second phase, the in vivo phase, so we are using the animal subjects or the human subjects. So how prevalent it would be if we use any alternative? जैसे कि अभी सवाल भी हो रहे थे कि radioactive components के लिए, chemotherapy components के लिए, definitely we are not going to inject anything to a healthy person or a healthy animal.
So if we use any alternative such as computer aided drug designing, जिसमें हम AI को यूज करते हुए, कंप्यूटर मोनोपोलिस को यूज करते हुए ये देख लें कि ड्रग की रिसेप्टर की क्या इंटरेक्शन हो रही है, क्या फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हाउ प्रिवेलेंट दैट वुड बी फॉर दिस पर्पस ऑफ द बायोइक्विवेलेंस एंड द बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज. अच्छा, मेरे ख्याल से शहरोज मैं आपको आंसर कर देती हूँ जितना सवाल आपका मैंने सुना अब तक, क्योंकि अभी आप अगेन म्यूट फेस में चले गए तो मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है उसका मैं सिंपल आपको ये आंसर कर दूँ। आप कह रहे हैं कि बी स्टडी की अगर हम कोई और ऑल्टरनेटिव निकालें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बीच में करेक्ट कर दूँ कि एनिमल मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। पहली बात, बायोइक्विवेलेंस में हम जो काम करते हैं वो हेल्दी ह्यूमन बॉडीज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो 100% हेल्दी होते हैं, उनका हेल्थी स्टेटस हम पहले ही वेरीफाई कर चुके होते हैं। बेस्ड ऑन दैट वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हुए वो स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये क्लियर कर लें कि एनिमल मॉडल्स में हम बी नहीं डिटरमाइन करते। अच्छा, सेकेंड थिंग इज दैट कि जो इन विट्रो इन विवो की बात आ रही है, इन विट्रो हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि WHO की गाइडलाइंस है कि 85% रिजोल्यूशन इन 15 मिनट्स। ठीक है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फॉल करती है, वो अपना रिजोल्यूशन दे रही है 15 मिनट्स में, तो देन यू मे प्रोसीड द बी स्टडी इन ह्यूमन मॉडल, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बाकी जो आप AI को टूल्स को यूज़ करते हुए PK PD देंगे तो आई डोंट नो कि वो कितना परसेंट सक्सेसफुल होगा। अच्छा, बी में मोस्टली हम PD को फोकस नहीं करते हैं, हम PK को फोकस करते हैं based on the bioavailability, based on the PK parameters. As I told you, Cmax, Tmax, half-life, AUC, 0 to T and 0 to infinity, these are the major parameters. जिनकी बेसिस पे, जिनके रिजल्ट्स की बेसिस पे हम डिक्लेयर करते हैं कि बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। अच्छा, इन 5 पैरामीटर्स में से भी 3 पैरामीटर्स का कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें से Cmax, Tmax और AUC आपका मेजर पैरामीटर्स होते हैं। इन 5 में से अगर 3 भी क्वालिफाई कर जाते हैं और आप रेंज देखें 80 to 120% एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। बेसिकली एक ग्राफ बनता है जिसको हम ट्रेपेजॉइडल रूल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल रूल्स आप एक ग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर एरिया कर्व होता है। अगर तो आपके इन 5 पैरामीटर्स में से 3 भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्रोडक्ट क्वालिफाई हो जाती है, बायोइक्विवेलेंट हो जाता है। सो आई डोंट नो, इस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कोई ऐसा मॉडल सेलेक्ट हो जाए। इवन मैंने कुछ अरसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें लोगों ने मंकी पे काम करना शुरू किया था इंस्टेड ऑफ ह्यूमन मॉडल। जहाँ जो आप बात कर रहे थे एनिमल मॉडल्स की, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल पढ़ी थी, तो उन्होंने मंकी को यूज़ किया था इंस्टेड ऑफ ह्यूमन मॉडल, और लेकिन पर्पस वही था, ह्यूमन बॉडी ही चाहिए थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही इम्पैक्ट देख रहे थे। और आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ड्रग को सैंपल को विड्रॉ किया गया था। सेम प्रोसीजर जो ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करते हैं वो एनिमल मॉडल पे अप्लाई हुआ था उस केस स्टडी के अंदर। सो दे वर यूज मंकीज फॉर दैट केस। सो इसके अलावा मैंने अभी तक तो मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी तक मैंने कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं देखा। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा कोई और अच्छा ऑल्टरनेटिव आ जाए जिससे हम बी डिक्लेयर कर दें, but the importance of bee studies will be remain same. ठीक है? Okay, thank you. And my second discussion and question was about that as a principal clinical investigator, definitely आपकी की स्टडीज होती हैं, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके टाइमलाइन होती है, उसमें स्पॉन्सर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कहीं ना कहीं कोई डेविएशन या कोई ऐसा हो रहा होता है कि जिससे लगता है स्पॉन्सर कहता है कि यार मेरा फाइनेंस इस पे लग गया है और कहीं ना कहीं अप टू कंप्लीट होने वाला था, या जिनकी जो CROs होते हैं उनकी ह्यूमन रिसोर्स या उनकी मेहनत होती है, तो एज ए प्रिंसिपल रिसर्च इन्वेस्टिगेटर कौन कौन सी डेविएशन इन्वेस्टिगेटर उसमें कर सकता है? मतलब कोई ऐसी केस स्टडी हो, कोई ऐसा केस माजी में देखा गया हो? डेफिनेटली इथिकली कोई भी ये नहीं करेगा क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल है, बट व्हाट कैन इफ एनी ऑफ द कंडीशंस व्हाट ही कैन डू एज ए प्रिंसिपल रिसर्च इन्वेस्टिगेटर? अच्छा, देखिए, आपने डायरेक्टली डेविएशन की बात कर दी। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, एक चीज़ होती है अमेंडमेंट, एक होती है डेविएशन। ठीक है, मैंने अब तक
जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 18 ईयर्स में, मैंने जितनी भी बी स्टडीज या क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करवाए हैं, उसमें देखो अमेंडमेंट की चांसेस तो पॉसिबल हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजन जिनकी वजह से होता है समहाउ। अच्छा, अमेंडमेंट्स भी ऐसी होनी चाहिए जो सब्सटेंशियल हो, यानी कि इट्स प्रोड्यूसिंग एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा एंड द हेल्थ ऑफ द पेशेंट और द वॉलंटियर्स। अगर तो जो भी चेंजेस हो रही हैं, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, सब्सटेंशियल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेंज हो गई, मेरा रेजिग्नेशन आ गया, या मैं मूव कर गई, अल्लाह ना करे अवेलेबल ही नहीं हूँ मैं किसी वजह से, इट मे इम्पैक्ट, ठीक है। या आपने सैंपल साइज इंक्रीज कर दिया, या आपने कहा कि भाई इनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए आपने एडिशनल सेफ्टी टेस्ट ऐड करवा दिए, तो देयर इज अ सब्सटेंशियल अमेंडमेंट चांसेस, इट कैन बी पॉसिबल, आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डेविएशन, तो डेविएशन में ये होता है कि देखिए डेविएशन तो पॉसिबल ही नहीं है करना। डेविएशन एक वायलेशन है जो कि हम नहीं करेंगे। अगर हमसे वायलेशन या डेविएशन हो जाती है, वी हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू द स्पॉन्सर एंड our client or the DRAP कि ये डेविएशन हुई है, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट के चांसेस पॉसिबल हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन की लाइफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी बी स्टडी में या क्लिनिकल ट्रायल्स में। ह्यूमन की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि अगर इस पूरे एग्जीक्यूशन फेज में IRB, DRAP या आपका स्पॉन्सर को फील होता है कि देयर इज अ नीड टू चेंज समथिंग और अमेंड समथिंग, तो वो अमेंडमेंट, वो चेंजेस तमाम लोगों की कंसर्न के बाद किया जाता है और किया जा सकता है। लेकिन डेविएशन की, वायलेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी वायलेशन जिससे हेल्थ के ऊपर या डेटा की क्वालिटी पे इम्पैक्ट होगा, दिस इज अ वायलेशन एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट। Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Shahroz. The last question we will take from Dr. Faryar as we are short from time. Dr. Faryar, if you have any question or I have answered in the chat box, please let us know. Okay. Other question? Miss Naveen, I want to ask. Okay, Hello. sure. डॉक्टर सादिया, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब ड्रैप जो है वो अगर बी को मैंडेटरी कर देता है तो हमारी जो ड्रैप की रजिस्ट्रेशन है, मतलब पाकिस्तान में इतनी सारी कंपनीज हैं और हमारे पास जो सेंटर्स हैं वो बहुत कम है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा कंपटीशन या चैलेंज हो जाएगा कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल डाओ कर रहा है तो डाओ एट अ टाइम कितनी कंपनीज के लिए करेगा और कितने जेनेरिक पे करेगा? तो इसके लिए आप क्योंकि इस फील्ड से ऑलरेडी इन टच है, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो हाउ मच टाइम टेक फॉर बी और वन जेनेरिक? क्या हमें अपनी एस्टिमेशन लगानी पड़ेगी कि हमें अपनी प्रोडक्ट अगर अप्रूव करवानी है तो हमें इसके लिए इतना पहले अपने बायो इक्विवेलेंस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? देखिए, मैंने आपको यूजुअल टाइमलाइन बताया था कि हमारा यूजुअल टाइमलाइन 4 मंथ्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हमारे पास और भी बहुत सारी भी कंपनीज ने क्या किया है कि अपना पूरा प्लान हमसे शेयर करने के नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स का प्लान हमसे शेयर कर लिया है कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनकी भी कुछ प्रायोरिटीज थी ना। हमने उनसे पूछा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस साल की प्रायोरिटी क्या है, या फर्स्ट क्वार्टर की प्रायोरिटी क्या है, तो हमने उन तमाम मॉलिक्यूल्स को पहले रख लिया जिनकी प्रायोरिटी उनकी पहले थी, ठीक है। उन्होंने हमसे पूरा 3 साल का प्लान, 5 साल, किसी ने 5 साल का प्लान शेयर किया, किसी ने 3 इयर्स प्लान शेयर किया, तो हमने उनकी जो प्रायोरिटी की बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले पाइपलाइन में रख लिया, उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, जहां तक कि आप ये बात कह रही हैं, देखें पहले इसको इन्फोर्स होने दें। अगर हम पहले से इन तमाम चैलेंजेस को लेके आ जाएंगे कि जी 20 सेंटर तो अवेलेबल ही नहीं है और ये 3 सेंटर जो अवेलेबल हैं, जो अप्रूव्ड है इस वक्त, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को कैटर नहीं कर सकते। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर अस आल्सो, लेकिन जब इसकी नीड क्रिएट हो जाएगी तो इस तरह के सेंटर्स ही बन जाएंगे। अभी जहां तक मुझे बहुत सारे लोगों के बारे में पता है, देयर आर ट्राइंग टू कम इन अ मार्केट वेरी सून। मैं इनका नाम अभी नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे अच्छे बी सेंटर्स अभी मार्केट में आने वाले हैं वेरी सून। लेकिन देखिए वही वाली बात है ना, मार्केट की नीड तो क्रिएट होने दें। अभी देखिए मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में आपको यही बताया कि इसका फायदा है, नुकसान किसी सूरत में नहीं है।
आप लोग एक नेशनल कॉज के लिए काम करेंगे, इंडस्ट्री एक नेशनल कॉज के लिए काम करेगी, हेल्थ केयर सेक्टर को कितना बड़ा सपोर्ट आप देंगे, एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लो कॉस्ट में आप लोग देंगे, और इन साइड बाय साइड आपका अपना सेल का जो मार्जिन है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ साथ किसी भी इंटरनेशनल कंट्री की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये तो हम बार बार बेनिफिट्स की बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो चैलेंज आपको इनिशियली फेस ये होगा कि आपको थोड़ा सा इनिशियली टाइम, बिकॉज मेरे पास ही इसको बहुत बर्डन आ चुका है, बहुत सारा काम है, लेकिन हमने इसी तरह मेरे साथ साथ जो और इदारे जो काम कर रहे हैं वो लोग ऑफकोर्स इसी पैरामीटर पे काम कर रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस साल की जो प्रायोरिटी है हम पहले उसको फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर, क्योंकि देखिए जब हम कंडक्ट करते हैं 4 मंथ्स में हम सिर्फ आपका मॉलिक्यूल नहीं करके देंगे, हम आपके साथ साथ हमारे पास और जो है हमारे जो ये जो क्लिनिकल साइड होती है ना, ये सब पैरेलल काम कर रहे होते हैं। एक फेज कंप्लीट हुआ क्लिनिकल फेज में, आगे एनालिटिकल फेज की तरफ चले गए, फिर क्लिनिकल फेज के बाद एक और स्टडी स्टार्ट हो गई। तो ये सब चीजें जो है ना ऑनगोइंग है, आप लोगों को बीच में एक गैप नजर नहीं आएगा, बस हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, एग्रीमेंट में टर्म्स एंड डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किस मॉलिक्यूल को पहले कराना है, इसी तरह और भी मॉलिक्यूल्स होंगे इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज की जो समहाउ सेम होते हैं। तो चीजें थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो 2 से 3 अच्छे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आने वाले हैं, तो आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम है कि 20 सेंटर्स कम है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सीधी सी बात है, जब नीड क्रिएट होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लोग भी मार्केट में आ जाते हैं। तो ये लेकिन एक अच्छा हेल्थी साइन है पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, एक हेल्थ सेक्टर के लिए। तो आई थिंक हम सबको मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इंप्रूव होगा, पाकिस्तानियों की हेल्थ अच्छी होगी, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो हम नेशनल कॉज के लिए अगर काम करें तो आई थिंक हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए इसको, ये हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम जरूर है बट इट विल सॉल्व वेरी सून। I have a last question that could be important for all. If you allow me, I can ask. Ma'am, आपके past experiences में did you face any challenge of dropout cases and what's your contingency plan? देखिए ड्रॉप आउट केसेस का हमें पहले से देखें होता क्या है, ये तो बाय लॉ है कि आपने जो वॉलंटियर्स लेने हैं उनकी पार्टिसिपेशन वॉलंटियर नहीं होनी चाहिए। ड्यू टू एनी रीजन आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनकी वजह से ड्रॉप आउट हो सकता है और होता है। तो उन तमाम का कंटिजेंसी प्लान क्या होता है कि अगर आपका सैंपल साइज फॉर एग्जांपल किसी में 32 सैंपल साइज है तो मैं 32 वॉलंटियर्स को इससे कॉल नहीं करूंगी, मेरे पास बैकअप में हेल्थी वॉलंटियर सेलेक्टेड होने चाहिए, तकरीबन 10 प्लस होने चाहिए। इन केस देखिए सिर्फ ड्रॉप आउट नहीं होता, सम टाइम आपको वॉलंटियर से खुद भी टर्मिनेट करना पड़ता है, सम टाइम वॉलंटियर्स विड्रॉ कर लेता है, सम टाइम आपके पीआई सोचते हैं कि ये इनकी हेल्थ के लिए कंटिन्यू करना ठीक नहीं है तो उनको भी विड्रॉ करवा दिया जाता है। तो सम टाइम टर्मिनेशन भी होती है, विड्रॉल भी होता है, ड्रॉप आउट भी होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इन तमाम चीज़ों को रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करने के लिए पहले से ही हम अपनी प्रिपरेशन करके रखते हैं, क्योंकि देखिए जब तक कंपैरिजन नहीं होगा आप इवन देखिए आप उस रिजल्ट को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 24 स्टडी का सैंपल साइज था और अगर मेरे पास 23 सैंपल साइज रह जाएगा, एक बंदे ने ड्रॉप आउट कर लिया, तो उस 23 का डेटा भी मैं इंक्लूड नहीं कर सकूंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब तक पाकिस्तान के लिए कॉन्सेप्ट जरूर नया है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर हम सब ने देखे हैं, सीखे हैं, कहीं ना कहीं मेंशन भी हैं। इस तरह के डिफरेंट केस स्टडीज में लिखा हुआ है सारे प्रॉब्लम कि इन तमाम चीज़ों को कैसे टैकल किया गया। तो सबके पास एक कॉन्टिजेंसी प्लान ये होता है कि आप वॉलंटियर्स जो है आप यूज़ करते हैं, आपको अपना सैंपल साइज खराब नहीं करना। सम टाइम क्या होता है कि वॉलंटियर्स जो है अच्छा अगर आप ड्रॉप आउट की बात करें, आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि ड्रॉप आउट अगर वॉलंटियर्स ने मेडिसिन ले ली उसको भी तो ड्रॉप आउट हो सकता है, देन उस केस में क्या करेंगे? अगर तो ड्रॉप आउट इनिशियल फेज में हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुई है, कोई स्टडी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत आसान है, आपके पास बैकअप में वॉलंटियर्स सेलेक्टेड वॉलंटियर्स पड़े हुए हैं, आपने उनको कॉल की और आपने सैंपल साइज पूरा कर लिया। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब वॉलंटियर्स ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कर ली और इसके बाद उसने कहा कि मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, या फेज 1 उसने कंप्लीट कर लिया, पीरियड 2 पे वो आया ही नहीं, आप क्या करेंगे? ये तमाम चैलेंजेस भी होते हैं।
तो फिर आपको आउटलायर की तरफ देखना पड़ता है, आपको सैंपल ड्रॉप करना पड़ता है, आपको क्रॉसओवर का रिजल्ट्स पूरे रखने हैं, लेकिन वो रिजल्ट आपके लिए फिर बेकार हो जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन, देयर लॉट ऑफ इश्यूज जो कि अब तक हो चुके हैं। मेरे अपने पर्सनल तजुर्बे में भी 18 साल का एक्सपीरियंस है, भी मैंने भी बहुत सारे इस तरह की चीजें की हैं। तो वी ऑलवेज हैव सम बैकअप प्लान। ठीक है, Thank you so much for your answer. Thank you so much, everyone. I think we have answered all the questions. If some questions are pending, so please send us on our email. I will send our email addresses. And we are also sharing the feedback form. Please fill it so we can forward you the certificates of webinar. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sadia, for your time and a very informative session for all of us. Thank you so much once again. thank you so much for your time. Thank you.